Okay. Yeah, good afternoon, everyone. Here we are all gathered to attend the webinar initiated by our CMP in the series Grow Your Practice. We successfully completed 15 seminars and now going forward for the 16th one, naming Effective Wealth Management through Equity Investment and Capacity Building by our eminent speaker, Mr. Vatsal Khemka sir. So it's a great initiative by our committee for members in practice, and I thankful for them to arranging such sessions. Now I am coming about our eminent speaker, sir, CA Vatsal Khemka, sir. He is a seasoned finance professional based in Sri Ganganagar city, Rajasthan. He is a chartered accountant with a distinguished academic background, having achieved a notable rank in the CA examinations and receiving the prestigious Best Paper Award in the SFM subject in CA final examinations. His professional journey began with articleship at ENY, where he gained valuable experience in the audit domain. Post qualification, Vatsal embarked on a career at Deloitte but eventually decided to leave and fully transition to follow his passion for the stock markets. Currently, he dedicates his expertise to providing guidance and mentorship to aspiring market enthusiasts, assisting them in building successful career in finance and investments. In terms of professional development, Vatsal is actively pursuing his CFA Level 3 candidacy, further solidifying his knowledge and skill in investment, analyze, and portfolio management. Additionally, he is in the process of obtaining SEBI registration as a research analyst, underscoring his commitment to maintaining high standard of professionalism and regulatory compliance in his field. Here, we all joined this by welcoming Mr. Vatsal sir, and now I handing over the stage to him to start the session. Thank you, sir. Thanks, Kuldeep sir. And before starting, I want to thank ICI's management committee for organizing this webinar. And a special thanks to Rohit sir. He showed a faith in me. And recently, only I have met with basically Rohit sir in a seminar in Sri Ganganagar city. And I discussed with it that how a chartered accountant can benefit from equity markets or how he can generate a good amount of wealth using equity markets. And I also asked him that can we conduct a seminar or webinar on this topic to basically educate or to help a chartered accountant in this field. And here I am. I again want to thank Rohit sir and the whole management committee for basically providing me the stage to share my knowledge. So let's start. Let me share my screen. So before starting, let me tell you more about the topic effective wealth management through equity investments. बेसिकली अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में जब एक व्यू बनाते हैं ना, स्टार्टिंग में हमें एक ऐसा इमेज, ट्रेडिशनल सा इमेज एक ध्यान में आता है दैट वेदर ही वुड बी प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज या फिर किसी टाइप ऑफ एडवाइजरी में होगा, टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे. बट द वे आईसीआई हैज डिजाइंड आवर करिकुलम, आईसीआई ने अच्छे तरीके से हमारे करिकुलम को डिजाइन किया है टू प्रोवाइड अ गुड एक्सपोजर टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट.
and how a chartered accountant can use his or knowledge to get benefit from the market. एंड इवन अगर मैं बात करूं, एक चार्टेड अकाउंटेंट का फाइनेंशियल एक्यूमेन भी काफी हाई होता है, एंड एक वो अगर इसे अपना करियर बनाना चाहे तो एक काफी अच्छा ग्रोथ कर सकता है, बट स्टिल मैंने देखा है कि दैट वेरी लेस चार्टेड अकाउंटेंट एंटर इनटू दिस फील्ड और आइदर इनटू वेल्थ मैनेजमेंट एज अ आइदर एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर और एज अ आई वुड से एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर. So according to my point of view, if a chartered accountant if a chartered accountant works on his psychology and some theoretical concepts, then he can surely build a successful career. Let me share a real life example through a story on wealth creation. ये स्टोरी बेसिकली महाराष्ट्र के एक छोटे से विलेज अमलनेर की है, एंड इट इज सिचुएटेड अराउंड अ रिवर बोरी विद द नेम ऑफ बोरी रिवर. एंड 1960 की बात है दैट मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज इन्वॉल्व इन फार्मिंग. वहां पे किसी को कोई फाइनेंस का नॉलेज नहीं था, किसी के पास कोई मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं था, एंड सब फार्मिंग में अपना इन्वॉल्व थे. एंड वहीं पर एक कंपनी थी जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व थी. उस कंपनी का बेसिकली प्लांट उस विलेज में था, एंड जो भी उस फार्मिंग का या फार्मर्स का प्रोड्यूस होता था वो जनरली दैट कंपनी बाइज देयर रॉ मटेरियल और बेसिकली देयर प्रोड्यूस. एंड इसी रीजन के कारण कंपनी का एक काफी अच्छा गुडविल डेवलप हो गया था विद द फार्मर्स एंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज. एंड कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी. एंड इन 1970 कंपनी ने डिसाइड किया दैट वी शुड गो और एक्सपांड आवर ऑपरेशंस ऑल ओवर द इंडिया. एंड कंपनी ने डिसाइड किया कि लेट्स ब्रिंग एन आईपीओ, और उन्होंने अपना आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए ओपन करवाया. एंड जब सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ तो जो उस विलेज की पॉपुलेशन थी उस उन्होंने भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन उस आईपीओ में इन्वेस्ट किया. अपनी सेविंग्स का एक अच्छा पोर्शन उस पूरे विलेज ने, हर हाउस होल्ड ने एक पार्ट अपनी सेविंग्स का उस आईपीओ में सब्सक्राइब किया, अप्लाई किया. एंड कंपनी का आईपीओ भी आराम से लिस्ट हो गया, एंड कंपनी वाज परफॉर्मिंग गुड एंड एक्सपेंडिंग भी कर रहा था कंपनी. एंड 1982 में कंपनी ने डिसाइड किया दैट लेट्स एंटर इनटू आईटी सर्विसेज टू. एंड कंपनी ने आईटी में भी अच्छा ग्रोथ किया, एंड करंटली वो आईटी कंपनी हमारे इंडिया के टॉप 5 आईटी कंपनीज में से एक है. सो एनी गेसेस कुलदीप सर, एनी गेसेस अबाउट द कंपनी? Yeah, I think you are talking about Wipro. या, यू आर राइट. Wipro is the company which is now one of the top 5 IT companies in India. एंड जो लोगों ने वहां पे उस टाइम इन्वेस्टमेंट किया था विप्रो में, आज वो एक मल्टीफोल टाइम्स ग्रो हो चुका है. एंड उस विलेज का इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये हो रहा है कि आज भी विप्रो की मोर देन 3% ऑफ द होल्डिंग उस विलेज के विलेजर्स होल्ड करते हैं. एंड वहां की जो 3% होल्डिंग की वैल्यू है वो समवेयर अराउंड 3000 करोड़ है. मतलब इतना वहां पे हर फैमिली बेसिकली, कोई मिलियनर है, किसी के पास 100 करोड़ के शेयर्स मिले हैं, किसी के पास 50 करोड़ के. मतलब पूरा विलेज एक मतलब प्रोस्पेरिटी में रह रहा है करंटली. एंड कुछ फैमिलीज का तो सिर्फ और सिर्फ डेली एक्सपेंडिचर या एनुअल एक्सपेंडिचर विप्रो की डिविडेंड इनकम भी पूरा कर देती है. एंड Very थर्डली interesting. वहां पे एक नया ट्रेडिशन और बना है उसके बाद, दैट वेन एवर देयर इज अ न्यू बर्थ इन द फैमिली ऑफ दैट विलेज, सो दे परचेज सम शेयर्स इन द नेम ऑफ अ न्यू बोर्न बेबी एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन. एंड विप्रो उन विलेजर्स को वेल्थ इसलिए जनरेट कर पाया या फिर एक अच्छा मोमेंटम दिया उस इन्वेस्टमेंट को, रीजन सिर्फ यही था कि उन्होंने कभी भी ना विप्रो के शेयर को टाइम करने का ट्राई नहीं किया, या उसे डेली बेसिस पर ट्रैक नहीं किया कि लग रहा है कि अब बस विप्रो इंक्रीज हो चुका, लेट सेल विप्रो एंड बाय सम अदर शेयर. उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने दिया, टाइम को अपना रोल प्ले करने दिया, एंड इसी कारण कंपाउंडिंग ने भी अपना एक अच्छा रोल प्ले किया. एंड इसी रीजन के कारण कंपाउंडिंग को हम 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं. एंड लेट मी शो यू एग्जांपल थ्रू सिप कैलकुलेटर. इट्स अ रियल, बेसिकली हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कैसे एक अच्छा वेल्थ जनरेट हो सकता है. ये बेसिकली ग्रो का कैलकुलेटर है जो एक ब्रोकर जनरली हर जने को प्रोवाइड करता है.
सो व्हाट आई विल डू इज, सपोज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने रिसेंटली अभी अपनी जॉब स्टार्ट की है, एंड उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी, जैसे उसका मंथली इनकम है बेसिकली 1 लाख पर मंथ सैलरी मिल रहा है उनको, एंड ही डिसाइडेड दैट आई विल इन्वेस्ट 20% ऑफ माई अमाउंट in markets either through mutual funds or through direct investments. एंड ही डिसाइडेड कि अगर मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अगर सिर्फ 15% भी रिटर्न मिल जाए ना इन द लॉन्ग रन, मतलब कि अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 5 साल होल्ड करूं और मुझे हर साल एक 15% का रिटर्न मिल जाए, देन आई वुड बी वेरी सेटिस्फाइड. मीन्स माई मनी विल ग्रो एट 15% एवरी ईयर, ही विल बी सेटिस्फाइड. एंड उसने डिसाइड किया कि मैं अपना जो टेन्योर है वो 10 ईयर्स का रखता हूँ, कि मैं 10 ईयर्स लगातार हर मंथ 20,000 कंट्रीब्यूट करूंगा, एंड लेट्स सी व्हाट आर द एक्चुअल रिजल्ट्स. सपोज मैंने यहाँ पर 20,000 डाला, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने यहाँ पर रखा 15%, एंड वी कैन सी कि हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट समवेयर अराउंड 24 लाख रुपीज है, एंड टोटल वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट्स का 56 लाख रुपीज है. काफी अच्छा रिटर्न मिला. बट जो कंपाउंडिंग की एक्चुअल पावर है ना, वो ये है कि सपोज मैं यहाँ पर अपने 10 ईयर्स की ड्यूरेशन को जस्ट डबल कर देता हूँ 20 ईयर्स, मतलब हमारा जो 24 लाख का इन्वेस्टमेंट था वो 48 लाख का हो गया. 48 लाख रुपीज बेसिकली इन्वेस्ट हो गए इन द 20 ईयर्स. एंड आप चेंज देखें कितना चेंज आया है. सिर्फ हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट डबल हुआ है, बट हमारा जो टोटल वैल्यू है पोर्टफोलियो का वो 56 लाख रुपीज से 3 करोड़ रुपीज तक पहुंच गया है. एंड दिस इज द एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग. या फिर कंपाउंडिंग हमेशा लेटर ईयर्स में या फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छे तरीके से एक बेटर वे में परफॉर्म कर पाता है. एंड आप देखेंगे कि फर्स्ट 10 ईयर्स में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था उसका वेल्थ क्रिएट नहीं हुआ, बट लेटर 10 ईयर्स में उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया अराउंड एवरेज अर्न कर लिया है. सो दिस इज द एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग. सपोज मैं इसको 20 की जगह 30 ईयर्स कर दूं, जो 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था वो 14 करोड़ रुपीज का हो गया है. एंड ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डेली ट्रैक ना करें, या फिर उन्हें रोज टाइम करने का, या रोज आपको लग रहा है कि यार निफ्टी परफॉर्म नहीं करेगा सो लेट्स सेल, या फिर इस तरीके की कुछ भी चीजें, तो ये इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने से रोकता है. सो ये कुछ एसेट क्लासेस हैं जहां पर अगर हम इन्वेस्ट करें तो आर इन्वेस्टमेंट्स कैन ग्रो एट अ गुड रेट. एसेट क्लास बेसिकली वो सब एक सिमिलर एसेट्स का एक पूल बना देते हैं जिनका कोरिलेशन आपस में हाई होता है, एंड उसे हम एक एसेट क्लास बोलते हैं. एंड विद इन एन एसेट क्लास, सपोज लार्ज कैप इक्विटी हो गई, स्मॉल कैप इक्विटी हो गई, तो जनरली जो इनका कोरिलेशन है आपस में वो हाई होगा. सपोज अगर मार्केट क्रैश करता है तो दोनों टाइप की इक्विटीज नीचे जाएंगे. एंड वहीं जो अगर हम दो डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज मैं एक अमाउंट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ एंड दूसरा लिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, देन कोरिलेशन आपस में काफी कम होगा एसेट क्लास का आपस में. एंड इसी रीजन के कारण हमें एक डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल जाता है वहां पे, या फिर एक एज अ हेज एक्ट करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट. सपोज हमें इक्विटी ने कुछ रिटर्न नहीं दिया, इन दैट केस हाई चांसेस है कि रियल एस्टेट हमें एक अच्छा रिटर्न दे, बिकॉज जो मनी फ्लो है वो आपस में कोरिलेटेड है. सपोज लिस्टेड इक्विटी से किसी इन्वेस्टर ने पैसा निकाला, देन उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है, तो ही विल गो टू एन अदर एसेट क्लास. एंड इसी तरीके से वो बार बार अपना पैसा रोटेट करता रहता है. एंड अगर किसी इन्वेस्टर को लिस्टेड इक्विटी में जाना है, देन ही कैन गो फॉर डोमेस्टिक इक्विटी और फॉर इंटरनेशनल इक्विटी. सपोज मैं एक इंडियन इन्वेस्टर हूं, तो मेरे लिए जो इंडिया के मार्केट में या एनएससी या बीएससी में जो भी सिक्योरिटीज लिस्टेड होंगी वो मेरे लिए इंडियन सिक्योरिटीज या डोमेस्टिक सिक्योरिटीज मानी जाएंगी. एंड वहीं अगर मैं किसी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, सपोज मैंने यूएस में कोई माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक परचेज करना है, या फिर किसी गल्फ कंट्री का कोई स्टॉक परचेज करना है, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर मी. एंड जो आज का हमारा जो वेबिनार का जो मेन फोकस है वो भी लिस्टेड इक्विटीज के ऊपर ही है, कि दैट हाउ वी कैन बेसिकली यूज आवर नॉलेज, एंड हाउ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन यूज हिज नॉलेज टू बेसिकली navigate in the navigate और जनरेट वेल्थ इन द मार्केट्स. सो सेकंड एसेट क्लास पे अगर मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ सब एसेट क्लासेस का, कि हाउ दिस एसेट क्लास वर्क्स, या किसका कोरिलेशन किस एसेट क्लास के साथ कम है या ज्यादा है, या कौन सा इन्वेस्टमेंट हमें एक हेज बेनिफिट प्रोवाइड करता है विद इन दीज एसेट क्लासेस. सो फर्स्ट इज लिक्विडी, फर्स्ट इज लिस्टेड इक्विटी जो बेसिकली डोमेस्टिक या इंटरनेशनल होती है.
सेकंड इज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटीज बेसिकली वो कंपनीज इशू करती है जिनको बेसिकली एक फंड चाहिए होता है, एंड ये आपको एक फिक्स्ड रिटर्न प्रोवाइड करता है आइदर थ्रू क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली। एंड ये जनरली लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, सपोज 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 15 ईयर्स। एंड जो गवर्नमेंट इसमें भी जो सेफ एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है वो ट्रेजरी का, जिसका करंट यील्ड समवेयर अराउंड 7 to 7.5% चल रहा है ऑन अ टाइम फ्रेम ऑफ 10 ईयर्स। एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी एक अच्छा मेथड अपने मनी को पार्क करने का, जिनको वोलेटिलिटी पसंद नहीं है, या जिनको सपोज अगर कोई इन्वेस्टर है जो रिटायरमेंट की एज में है, देन ही शुड गो फॉर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, बिकॉज ये कंपैरिजन टू एफडी काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, एंड ये मार्केट में ज्यादा वोलेटाइल भी नहीं होते। थर्ड इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बेसिकली एक ऐसा एसेट क्लास हो गया जो आपके एक्सेस मनी को एक शॉर्टर ड्यूरेशन को पार्क करने के लिए बेसिकली हेल्प करता है। इसमें 1 मंथ से लेकर 3 मंथ, 6 मंथ्स तक का ड्यूरेशन का ट्रेजरी या फिर बॉन्ड्स या शॉर्टर ड्यूरेशन बॉन्ड्स होता है, जो सपोज मेरे पास अभी सपोज 1 CR का अमाउंट है, एंड मुझे लग रहा है कि अभी इक्विटी मार्केट्स मे बी आने वाले 2 साल में करेक्ट हो सकते हैं, then what I can do is I can park my money in fixed income securities or can go for cash and cash equivalents. बट अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें अपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को काफी कम रखना पड़ेगा, बिकॉज ये सिर्फ हमारे फंड को पार्क करने के लिए यूज होते हैं, ना कि उनसे रिटर्न जनरेशन का हमारा मोटिव होता है। एंड फोर्थ इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक काफी एक अच्छा एसेट क्लास है, पर्सनली मेरा भी काफी फेवरेट है। रीजन बीइंग इसकी सप्लाई तो लिमिटेड है, देखो, एंड व्हाट इज द डिमांड इसकी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। एंड अगर हम देखें लास्ट के 2 इयर्स के अंदर इंडिया में जो रियल एस्टेट का मार्केट ग्रो किया है ना, वो एक फेबुलस वे में इंक्रीज किया है। लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे 100% गेन्स हुए हैं इस बार। अगर मैं सिर्फ अपने सिटी के बारे में एक एग्जांपल दूं, तो जस्ट मेरे घर के बाहर एक घर से थोड़ा सा आगे जाके एक हाईवे लगता है, वहां पर अभी पिछले साल वो प्रॉपर्टी सपोज 20/80 का कोई प्लॉट है, वो प्लॉट पिछले साल हमें मिल रहा था समवेयर अराउंड 1 CR। एंड उसकी एक्चुअल अमाउंट अगर हम आज भी अगर मार्केट में उसे परचेज करना चाहें तो वो 2.5 CR के आसपास मिल रहा है सिर्फ 1.5 ईयर्स के अंदर। इतना रिटर्न इक्विटी में भी मे बी पॉसिबल नहीं है इन शॉर्टर ड्यूरेशन अर्न करना, बट द वे रियल एस्टेट हैज परफॉर्म, एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है परफॉर्म करने का, बिकॉज जो एमएनसीज है या फिर बड़ी कंपनीज है वो अपना प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं, या फिर कुछ भी रीजन के कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारा, या फिर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो रही है तो वो अपना एक खुद का हाउस परचेज करना चाहते हैं, कुछ भी मैक्रो फैक्टर्स के कारण, माइक्रो फैक्टर्स के कारण वो एक रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड रियल एस्टेट एक काफी अच्छा सोर्स है अगर आपको लिक्विडिटी का इशू नहीं है, एंड अगर आपका टाइम होराइजन काफी बड़ा है ना, सपोज आपको 10-20 ईयर्स के लिए अपने आपको कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, देन रियल एस्टेट इज अ गुड सोर्स टू पार्क योर बिग अमाउंट ऑफ मनी। मीन्स अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी सपोज 90% पोर्टफोलियो है वो रियल एस्टेट के अंदर ही इन्वॉल्व है, बिकॉज माई फादर इज इन कंस्ट्रक्शन और बेसिकली इन एडवाइजरी सर्विसेज इन रियल एस्टेट। सो मुझे पता है कि व्हाट इज द एक्चुअल पावर ऑफ रियल एस्टेट। एंड फिफ्थ इज कमोडिटीज। एंड विद इन कमोडिटीज भी हम बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर एक काफी अच्छा सोर्स है फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। एंड ये तो इंडिया का ट्रेडिशन है कि हर बेसिकली फेस्टिवल के जरिए या फिर किसी बेसिकली कोई भी उनके फैमिली में कुछ फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो एक गोल्ड या सिल्वर एक मतलब एक अच्छा ट्रेडिशन है जो एक इंडियन हाउस होल्ड को रिसेशन में जाने से बचाता है। एंड Sorry, sir, to disrupt. Actually, we have audience from all over India, so they are asking to if we can convert the language in Yeah. English, so it will be beneficial for all. Thank you, Okay. sir. So I was talking about commodities, and within commodities, gold and silver can be a good investment for a longer duration. And in India, I would say that buying gold or silver is a part of a tradition. And if I tell you about a fact that Indian households hold about 11% of the world's total gold reserves, and a study has proved that India has a very less chance to go into a recession in comparison to
other countries because India holds a good amount of reserves या फिर India के household holds a good amount of gold in as a part of the reserves. And sixth is alternative investments. जैसा कि हम देख सकते हैं that in India startup culture is rising. So the people which can take high risk or are not having any liquidity constraint, they are always currently going for private equity. And in private equity जो हमारे investments है वो काफी they give a multifold returns. And currently there are in India many private equity funds or venture capital funds are issuing money and pooling money from the high net worth investors so that they can fund a startup and create a good amount of money. But the sixth asset class is somewhat risky for retailers or for new investors. This basically alternative investment classes तब prefer करना चाहिए when he has a grip in other 5 asset classes or they are having a good amount of wealth or have a big capital. Then they should prefer the sixth asset class because of high volatility. So our focus is only on listed equity, that how we can basically use our knowledge, or chartered accountant can use knowledge to get benefit from equity. And equity में भी invest करने के there are many benefits. Like also it has act as a hedge. Suppose आपका portfolio किसी different asset class में है and you want to you're basically diversify your portfolio. So what you can do is you can invest some amount in equity. Equity हमें high returns भी generate करके देता है, and वही equity returns हमें inflation को भी beat करता है. That it also beats inflation. And equity has the capacity to grow your investments multiple times too. And iska proof we have seen in the last 1 or 2 years in the market, that how well equity market can perform. And just after COVID till now the market has run in a very good way, or I can say in a fundamental way. Markets ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है in last 4 to 5 years. So, and the way India's population is getting aware of the markets, Indian equity can grow at a very good rate. So how one can invest in equity? There are basically four different ways through which a investor can invest in equity, or take an or he or she can take exposure in equity. First is initial public offering. Basically किसी भी company को if they want to get listed or want to raise funds from the public, then उन्हें market में list होना पड़ता है with the exchanges. And IPO is a starting point for a new investor. That currently जो IPO का market है in India, it is also in a very good phase. People are getting good listing gains just at the day of listing, and the investors which hold it for a longer duration, they also get a huge or can generate a huge amount of wealth through equity, basically from IPO investing only. If I take an example, 2020 में एंजल ब्रोकिंग नेम का एक शेयर लिस्ट हुआ था एट 250, जिसका कंपनी ने इशू प्राइस दिया था एट समवेयर अराउंड 330 रुपीज. एंड विद इन 2 to 3 years span of time, currently you can check the price. एंजल ब्रोकिंग समवेयर अराउंड 2600 ट्रेड कर रहा है, एंड इससे पहले एंजल ब्रोकिंग हैज मेड एन हाई ऑफ 3400 रुपीज. And how investment of 250 rupees can generate a 10 times return in 4 years time period. And comparison to like going for private equity, listed equities are much better because SEBI एक तो पूरा हर चीज का टेक केयर करता है. एंड अगर कोई कंपनी पब्लिक जा रही है, देन इट इज ऑलरेडी हैविंग अ गुड कैश फ्लो. उसके पास इन्वेस्टमेंट्स अच्छी है, उसके पास देखा जाए तो एक ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, उनके पास एक ब्रांड वैल्यू है, उनके पास एक लीडरशिप क्वालिटीज है, तभी वो मार्केट में लिस्ट हुई हैं. सो आईपीओ इज द गुड वे टू स्टार्ट फॉर अ न्यू इन्वेस्टर. Second, one can invest through mutual funds. And within mutual funds are basically of two types, either equity or debt funds. But I want कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है अगर मार्केट में, तो then you should prefer equity funds, because रिटेलर्स के लिए इक्विटी फंड ज्यादा बेटर होते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डेट फंड्स. क्योंकि डेट फंड्स में रिटर्न एफडी के आसपास ही आता है, या एफडी से थोड़ा ज्यादा आता है, बट
इक्विटी एक ऐसा सोर्स है जो हमें एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। एंड इक्विटी फंड्स में बेसिकली क्या होता है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है दे पूल मनी ऑन बिहाफ ऑफ बेसिकली public, and they invest that money in equity markets. And within mutual funds there are different categories. Suppose investor wants to invest or take exposure in large cap companies, then वो large cap companies की mutual fund buy कर सकता है। and इसी तरीके से they can go for mid cap companies, small cap companies, or they can go for either through sector rotatorial funds जो basically try करते हैं market को time करने का। they basically rotate sector to sector in expectation that this sector would be outperforming in comparison to that other sector। and इसी तरीके से हम one can go for dividend yield funds। and हर fund में invest करने का there should be different motive। suppose a person is somewhere between the age of 40 to 50 and he wants a stable dividend income through equity markets, and उसे चाहिए बेसिकली मुझे एक एनुअली या फिर मंथली या फिर सेमी एनुअली एक अच्छा डिविडेंड मिले फ्रॉम माय इन्वेस्टमेंट्स rather than a capital gain। so what he can do is he can prefer dividend yield funds। so म्यूचुअल फंड्स का ना यूज बेसिकली इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिफर करता है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर एम भी ये डिफर करता है। एंड इससे हम एक रिस्क मैनेजमेंट के मोटिव से भी देख सकते हैं दैट द पर्सन हु वांट्स टू टेक हाई रिस्क he or she can prefer small cap funds or mid cap funds, or can go for growth funds जो बेसिकली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो हाई ग्रोथ या फिर जो आने वाले टाइम में एक अच्छा बिजनेस बन सकता है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज अ गुड विद इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इज अ बेसिकली गुड एसेट क्लास फॉर अ न्यू इन्वेस्टर जिन्हें नॉलेज नहीं है और आइदर दे आर हैविंग टाइम कंस्ट्रेंट, सो दे कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स एज अ स्टार्ट। एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्गर ड्यूरेशन में समवेयर अराउंड एवरेज 15 to 20% प्रोवाइड कर देते हैं। सो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। एंड थर्ड इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETFs भी समवेयर सिमिलर है म्यूचुअल फंड्स के रिस्पेक्ट में। जस्ट if suppose I want to take an exposure in index specifically, or I want to go for a specific sector, सपोज मुझे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है या फिर आई वांट टू इन्वेस्ट इन निफ्टी फार्मा, एंड आई एम नॉट हैविंग नॉलेज टू गो फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स और टू सेलेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स, और मुझे या फिर मुझे सपोज मुझे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है। अगर मैं हर कंपनी का उसके वेट के अकॉर्डिंग शेयर परचेज करने लग गया, देन आई नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू परचेज देयर शेयर्स इन अ स्पेसिफिक वेटेज इन विच दे आर कैरिंग इन निफ्टी 50। so what I can do is instead of buying shares in the market, I can purchase Nifty ETFs और Nifty 20। ये एक अच्छा ऑप्शन है इंडेक्स को रेप्लिका करने का। एंड इसी तरीके से इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्पेसिफिक सेक्टर, सपोज आईटी, आई वांट टू गो फॉर आईटी और आई वांट टू गो फॉर pharma, so what I can do is I can purchase their ETFs। and ETF is also a good or a safer option to park your good money in equity। and let me show you the Nifty 50 ETFs movement। let me change my screen। So this is the chart of Nifty 50। Kuldeep, is my screen visible? Yes, it's visible. So current today we can see that Nifty ने 0.1% का मूवमेंट दिया है। एंड व्हाट आई कैन डू इज मैं आपको निफ्टी 50 का निफ्टी ETFs का मूवमेंट दिखाऊं तो वो भी समवट सिमिलर ही होगा इसका। निफ्टी 20, सो एज यू कैन सी दैट समवेयर जो इनका मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं सेम रहता है। डे विद इन डे मे बी डेट कैन चेंज, बट अगर हम एक साल की बात करें तो अगर इन केस निफ्टी में 12% रिटर्न जनरेट हुआ है, देन निफ्टी 20 या निफ्टी ETFs होते हैं वो भी समवेयर अराउंड 11.5% या 12 के पास रिटर्न दे देते हैं। वो जो डिफरेंस होता है छोटा सा अप्रोक्सीमेशन का, वो बिकॉज ऑफ द ट्रांजेक्शन चार्जेस और ऑपरेटिंग चार्जेस के कारण हो सकता है, बट ETFs आर a good source of replica of Nifty 50। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका चार्ट भी शो करूं तो जो निफ्टी 50 है
बिल्कुल सिमिलर चार्ट बनेगा। सपोज ये निफ्टी 20 का चार्ट है, अगर मैं बताऊं आपको कि कितना रनअप दिया इन्होंने यहाँ से, तो व्हाट आई कैन डू इज, सपोज मैं 4 जून से लेकर अब तक का बताता हूँ कि निफ्टी 20 ने कितना रिटर्न दिया है, एंड इट इज अराउंड 10.8%। एंड वहीं अगर मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता इतना, और निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता तो भी वो इतना ही ग्रो होता। लेट मी शो यू। ये रहा, माइनर चेंजेस होंगे, बट मेजोरिटी ऑफ द मूवमेंट विल बी सेम, बिकॉज जो ईटीएफ अपनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है दैट इज थ्रू इक्विटी निफ्टी 50 शेयर्स ओनली। सो एंड जो आज का हमारा जो मेरा फोकस है बेसिकली, या जो मेरी एक्सपर्टीज है, वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में इक्विटी की। एंड आवर टॉपिक वुड बी हाउ वी कैन बेसिकली इन्वेस्ट थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। एंड अगर हमें इक्विटी एक्सपोजर अगर डायरेक्टली लेना है, तो वन कैन प्रेफर कैश सेगमेंट। एंड कैश सेगमेंट उतना ही सिंपल है जितना एक ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी परचेज करना। सपोज रिलायंस करके एक कंपनी है, लिस्टेड है मार्केट में, एंड एवरीबडी नो रिलायंस इज द लीडर ऑफ, या मार्केट कैप सबसे हाई है रिलायंस का, एंड एवरीबडी नोज द नेम ऑफ द रिलायंस। एंड सपोज मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है कुछ अमाउंट, या मुझे रिलायंस का एक स्टॉक परचेज करना है, एंड करंटली सपोज रिलायंस का स्टॉक प्राइस समवेयर अराउंड 3000 रुपीज है। तो वोट आई विल बी डूइंग इज, मैं 3000 रुपीज मार्केट को दूंगा, एंड आई विल गेट 1 शेयर ऑफ रिलायंस इन माई नेम। सो इक्विटी कैश सेगमेंट इतना ही सिंपल है। एंड विद इन इक्विटी के अंदर भी शेयर्स को बेसिकली 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है, दैट आइदर द स्टॉक्स कैन बी लार्ज कैप, और आइदर लार्ज कैप के अंदर बेसिकली वो स्टॉक्स आ जाते हैं जिनके पास कैश काफी अच्छा कैश पड़ा होता है उनके पास, बेसिकली दे आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज। सेकंड, दे आर हैविंग अ गुड ब्रांड इमेज, और दे आर द मार्केट लीडर्स, और दे आर द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स ऑफ दैट इंडस्ट्री। एंड जनरली ये स्टॉक्स काफी सेफर होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स। एंड जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है बेसिकली वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, बिकॉज दे आर लेस वोलेटाइल इन कंपैरिजन टू अदर टू इन्वेस्टमेंट्स, और मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस। एंड ये लार्ज कैप स्टॉक्स में जनरली फ्रॉड का चांसेस या फिर कोई बड़ा मैनिपुलेशन होने का चांसेस भी काफी कम होता है। एंड इनकी मार्केट कैप भी मोर देन 20,000 करोड़ रुपीज होती है। So it makes a safer investment for a new person who wants to enter into market through equity cash segment. And second is mid cap stocks. ये stocks basically high growth show करते हैं, that they can grow their company in at a good rate, or I would say at a high rate. बट इन कंपनीज के पास थोड़ा सा कैश फ्लो कम होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप स्टॉक्स। सेकेंडली, ये स्टॉक्स अभी इतने बड़े लेवल पे ऑपरेशंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर दे आर इन अ ग्रोइंग स्टेज। सो ये स्टॉक्स जनरली वोलेटाइल होते हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप स्पेस। बट एंड देयर आर हाई चांसेस कि इनके पास कैश फ्लो का भी इशू हो सकता है, बट स्टिल दे आर अ गुड वे टू इन्वेस्ट योर मनी। एंड द मार्केट कैप in which these stocks range is generally 5,000 to 20,000 crores. सपोज मैं आपको एक मिड कैप स्टॉक का एग्जांपल देता हूं। देयर इज अ स्टॉक विद द नेम ऑफ रोसारी बायोटेक। ये एक मिड कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप आई थिंक समवेयर अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास है। आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक 1 सेकेंड। तो मार्केट कैप समवेयर अराउंड 4,500 करोड़ के आसपास है। एंड इट इज अ मतलब आई कंसीडर इट इन द मिड कैप स्पेस, बट टेक्निकली इट इज अ स्मॉल कैप कंपनी। एंड अभी कुछ पास्ट टाइम में ये एक मिड कैप कंपनी थी, रीजन बीइंग इसका जो स्टॉक प्राइस था वो समवेयर अराउंड आई वुड से 1,500 रुपीज का था। सो उस टाइम इसकी मार्केट कैप समवेयर अराउंड 8,000 सीआर या 9,000 सीआर के आसपास थी इसकी जो मार्केट कैप है। एंड
ये कंपनी एक अच्छा ग्रोथ अपने सेक्टर में एक अच्छा पोजीशन होल्ड करता है, अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करता है एंड इज आल्सो ग्रोइंग एट अ गुड रेट. बट these type of investments are quite risky because currently इसका जो स्टॉक प्राइस है वो somewhere around डाउन साइड में 650 रुपीज टच कर आया है एंड द हाई वाज समवेयर अराउंड 1500 रुपीज. सो इतना वोलेटिलिटी होता है इस कंपनीज के अंदर, बट दीज कंपनीज कैन हेल्प यू जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. एंड अगर आप यू आर हैविंग अ गुड रिसर्च इन दीज स्टॉक्स और आर हैविंग अ गुड टेक्निकल और फंडामेंटल स्किल्स इन एनालाइजिंग दीज स्टॉक्स, देन यू कैन आप काफी मल्टी बैगर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस स्पेस में, मल्टी मिड कैप स्पेस में. And thirdly, if you are aggressive trader and you want ki like I want to double my money in duration of 1 year or in 6 months, then you can go for small cap stocks. These stocks are generally, ये stocks basically काफी रिस्की होते हैं या फिर काफी वोलेटाइल होते हैं एंड जनरली जो फ्रॉड के या फिर जो मैनिपुलेशन के चांसेस या जिसको बोलते हैं हम ऑपरेटेड स्टॉक्स होते हैं, ये वो स्मॉल कैप स्पेस के स्टॉक्स होते हैं. बट स्मॉल विद इन स्मॉल कैप भी देर आर वेरी गुड कंपनीज जो एक अच्छे लेवल का ग्रोथ शो कर सकते हैं इन फ्यूचर. सो बेसिकली ये सब ना हमारे रिसर्च पे डिपेंड करता है दैट हाउ वी सेलेक्ट गुड स्टॉक्स. नथिंग इज गुड और नथिंग इज बैड, जस्ट रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर को इन तीनों सेक्टर्स में से स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए. एंड दिस इज द होल पॉइंट कि फर्स्ट आपको अपना देखना है कि रिस्क एपेटाइट कितना है, दैट how much you can take a risk in the markets, and then to identify which stocks you like or you want to invest, or you see the future in which stocks. This is the whole game. So the next topic is, firstly we have taken direct investment exposure through cash segment. The next is equity derivatives. ये comparison to cash segment काफी volatile होते हैं and also have the capacity to either grow your capital or blow your capital. सो बेसिकली आपको एक्सट्रीम मूवमेंट्स देते हैं काफी, ये आपको लिवरेज दे देते हैं. एंड बेसिकली इनको मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का एक ही रीजन था एक्सचेंजेस का, दैट दे वांट टू प्रोवाइड अ हेज. और बेसिकली इसका स्टार्टिंग यूज था कि ये लोग एज अ हेज यूज करें. सपोज एक फार्मर है जिसने अभी सपोज आई वुड से ऑरेंजेस प्लांट किए हैं एंड उससे डर है कि इन द कमिंग 6 months सपोज ऑरेंजेस का प्राइस ड्यू टू आइदर थ्रू अ मैक्रो फैक्टर और ड्यू टू सप्लाई उसका ऑरेंजेस का प्राइस गिर जाएगा. एंड ही वांट्स कि जो आज करंटली मार्केट में सपोज 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से ऑरेंजेस का प्राइस चल रहा है, देन ही वांट कि मुझे ना आज वाला प्राइस भी मिल जाए ना, देन आई वुड बी सेटिस्फाइड. सो व्हाट ही कैन डू इज through equity derivatives, what he can do is he can short a futures contract of oranges suppose, and this way he can hedge or secure a basically price of 80 rupees today only, and delivery he has to provide a delivery after 6 months or whatever the tenure of the futures contract or forward contract according to that contract only. So firstly I think I want to explain futures or what is a futures contract. So suppose there are two investors, Mr. X and Mr. Y. Mr. X किसी रीजन के कारण सपोज रिलायंस पे बुलिश है. कोई भी रीजन हो सकता है, सपोज उनका टेक्निकल रीजन है या फिर मे बी वो फंडामेंटल एक इन्वेस्टर है, उस रीजन से दे आर बुलिश ऑन रिलायंस. एंड वही जो मिस्टर वाई है वो किसी रीजन के कारण रिलायंस के स्टॉक पर बीरिश है. सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, दैट इन केस रिलायंस 3000 से 3100 हो जाता है सपोज इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 or 2 months, then Mr. Y will pay the difference like 100 rupees difference to Mr. X. and वहीं अगर वो स्टॉक प्राइस 3000 से 2900 पे आ जाता है, then in that case Mr. X will pay that much specific difference to Mr. Y. बट एक्सचेंज ने कुछ इसके अंदर सर्टेन कंडीशंस अप्लाई कर दी है टू मेक इट अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्टली कि आप ना रिलायंस के फ्यूचर्स के अंदर ना एक या दो शेयर्स ट्रेड नहीं कर सकते. यू हैव टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक लोट, एंड एक लोट के अंदर सपोज रिलायंस के 300 शेयर्स आते हैं, देन जो आपका अगर सपोज आपने एक फ्यूचर को बाय किया है
then in case Reliance stock moves by 10 rupees, then in that case जो आपका profit and loss है वो 3000 rupees से impact होगा, because उसके अंदर 300 shares का movement included है basically futures contract में. And second condition is that कि इसका एक fixed expiry होता है. ऐसा नहीं कि आप इसको 4 महीने होल्ड कर लें. There is expiry of 1 month generally, and that is month end. And suppose अभी मुझे रिलायंस के अंदर एक्सपोजर लेना है, तो what I will do is मैं जुलाई एंड का फ्यूचर्स बाय या सेल कर सकता हूं. थर्ड इज कि इसके अंदर मार्क टू मार्क सेटलमेंट होता है, दैट वट एवर द लॉस और प्रॉफिट ऑन एंड ऑफ अ मार्केट डे, that will be deducted from the account of X or will be deposited to the account of X according to the moment of the stock price. And fourth is कि इसके अंदर एक्सचेंजेस हमसे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक 10 या 15% का इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करवाते हैं, so that both the parties or any party do not make a default while fulfilling his obligations. And उससे हम इनिशियल मार्जिन या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं. So this is the whole and इन सब कंडीशंस को अगर हम समराइज कर दें, then this is a futures contract. Suppose Mr. X has bought a futures contract on Reliance at a price of 3000 rupees. And अगर सपोज विद इन 10 days रिलायंस ने 3000 से 3010 रुपीज का मूवमेंट दे दिया, in that case Mr. X will be sitting on a profit of 3000 rupees because लोड साइज 300 लोड साइज था जो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का, वो 300 स्टॉक्स का था. इन दैट केस रिलायंस का मिस्टर एक्स का 3000 का प्रॉफिट होगा, एंड वही मिस्टर वाई का 3000 का लॉस होगा, सपोज मिस्टर वाई ने उसे शॉर्ट किया है तो. एंड इसी सबको हम एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमें बेसिकली लीवरेज प्रोवाइड करने का या फिर एक हेज प्रोवाइड करने का मेथड देता है, बट जनरली पीपल आर यूजिंग इट फॉर आइदर फॉर स्पेक्यूलेशन और फॉर बेसिकली taking a big amount of exposure without their having risk capacity. And I would recommend that कि in first 1 or 2 years जब तक आप इक्विटी मार्केट को अंदर से ना समझ लें, you should not basically invest your money or trade your money through equity derivatives. And the second part is options. So ये भी जो ऑप्शंस होते हैं वो भी सिमिलर है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के, बट इसमें कुछ सर्टेन डिफरेंसेस या चेंजेस आ जाते हैं. सपोज वही दो इन्वेस्टर्स हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, एंड मिस्टर एक्स रिलायंस पे किसी रीजन के कारण बुलिश है, वही मिस्टर वाई किसी रीजन के कारण रिलायंस पर बेरिश है. सो व्हाट दे कैन डू इज रिलायंस जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है या इतना रिस्क टेकिंग उनका एक्सपोजर नहीं है कि वो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाय करे, नेकेड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को. सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर वाई, जिसके अंदर वो मिस्टर वाई से एक राइट परचेज कर लें रिलायंस का, दैट इन केस अगर रिलायंस 3000 रुपीज से अगर 100 रुपीज का मूवमेंट देता है अपसाइड, देन जो उतना मूवमेंट का डिफरेंस है वो मुझे मिस्टर वाई पे करेंगे. एंड इसी राइट को परचेज करने के लिए मिस्टर एक्स को एक सर्टेन अमाउंट का प्रीमियम मिस्टर वाई को एज अ पार्ट ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट पे करना पड़ता है. सपोज पर शेयर मिस्टर वाई बोलते हैं मुझे 10 रुपीज का प्रीमियम चाहिए. इन दैट केस मिस्टर एक्स विल पे 3000 रुपीज, बिकॉज इसके अंदर भी लोड साइज में ट्रेड होता है. सो मिस्टर एक्स विल पे 3000 रुपीज टू मिस्टर वाई टू परचेज द राइट ऑफ रिलायंस. एंड इस राइट को अगर वो राइट बुलिशनेस की तरफ शो करता है, देन उस राइट को हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं. एंड वहीं अगर कोई इन्वेस्टर एक बियरिश ट्रेड बनाना चाहता है या फिर वो मार्केट में डाउनसाइड एक्सपोजर लेना चाहता है, सपोज मिस्टर एक्स को अगर बियरिशनेस लग रहा है, तो दैट देन ही कैन डू इज वो एक पुट ऑप्शन बाय कर लेता है. एंड पुट ऑप्शन के अंदर भी हमें एक स्पेसिफिक प्रीमियम मिस्टर वाई को पे करना पड़ता है टू गेट द राइट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. एंड इसी सब को हम एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. एंड जो मार्केट है इसके अंदर हम एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस और फ्यूचर्स. एंड इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकते हैं, जैसा कि स्ट्रेडल यूज कर सकता है कोई बंदा, कोई दे कैन गो फॉर लॉन्ग स्ट्रेडल और दे कैन गो फॉर शॉर्ट स्ट्रेडल. ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये
एक काफी कॉम्प्लेक्स और या फिर एक टेक्निकल टॉपिक है, एंड आई वांट टू कीप दिस सेमिनार या वेबिनार सिंपल, बिकॉज जो करंटली जो वेबिनार में लोग अटेंड कर रहे हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से या फिर एक नॉन स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड से आते हैं. सो इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम टू अंडरस्टैंड आइदर फ्यूचर्स और ऑप्शंस और गोइंग फॉर different technical strategies. So for the new comers or who want to start their career in market, I would request, or I would recommend you that for 1 or 2 years please avoid options or futures. आप तभी इसमें एंटर करें जब आप इसकी वोलेटिलिटी को एक समझने लग जाएं या उसकी वोलेटिलिटी को डाइजेस्ट करने लग जाएं, बिकॉज these contracts or these instruments have the capacity to basically multiply or like blow your capital. So the next topic is, if I have decided that I want to like start in markets, then what should be our allocation of equities in our portfolio, or what should be the allocation in our asset class portfolio of equity? And there is a very good and interesting concept in CFA level 3, the concept of human capital and financial capital. ह्यूमन कैपिटल बेसिकली एक इन्वेस्टर का, सपोज एक 30 years ओल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सो जो उसकी फ्यूचर इनकम है या फिर वो जॉब से जो भी अर्निंग करने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली उसकी ह्यूमन कैपिटल होती है. एंड वही जो फाइनेंशियल कैपिटल होती है वो बेसिकली उसके पास जो करंटली उसके पास मॉनेटरी रिसोर्सेज है, सपोज उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, वो उसकी बेसिकली फाइनेंशियल कैपिटल हो गई. एंड ये कंसेप्ट बेसिकली आपको एक आइडिया दे देता है या फिर एक बेस प्लान प्रोवाइड कर देता है दैट वेदर यू शुड बी गोइंग फॉर इक्विटी और नॉट. एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको. ये सपोज एक 25 years का करंटली न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने अभी रिसेंटली ही जॉब स्टार्ट किया अपना. एंड इन दैट केस जो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो ह्यूमन कैपिटल है ना, उसका नेचर एक डेट के नेचर का है या फिर एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी के नेचर का है. बिकॉज वो मंथली एक उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रहा है. मतलब मार्केट में कुछ अब जा रहा है, रिसेशन में जा रहा है, उससे उसकी सैलरी पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा. ही वुड बी गेटिंग अ सैलरी, अ फिक्स्ड सैलरी. सो उसका जो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल है वो वैसे तो इनिशियली करियर्स में हाई होता है, एंड साथ में ह्यूमन कैपिटल होता है वो उसका डेट के नेचर का है. सो व्हाट ही शुड डू इज, उससे जो अपना फर्दर इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में लेकर जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी उसका एक काफी अच्छा पोर्शन ह्यूमन कैपिटल का है जो कि डेट या फिक्स्ड कैपिटल के नेचर का है. इसी स्लाइड में देखो चार्ट है यहाँ पर. देखो अगर कोई पर्सन 25 years का है, देन उसका जो ह्यूमन कैपिटल होगा वो पीक पे होगा. सपोज आज आपने जॉब करना स्टार्ट किया, देन आप 60 एज के एज तक आप एक अच्छा जॉब कर सकते हैं. सो जो उसका प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट पर होगा वो एक काफी हाई होगा. बेसिकली वही आपकी एक मेन वेल्थ होगी आज के टाइम में, बिकॉज जनरली एक 25 year old का फाइनेंशियल कैपिटल काफी लो होता है एंड ह्यूमन कैपिटल पीक पे होता है. एंड एज टाइम पासिस जो ह्यूमन कैपिटल है वो तो धीरे 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 नील होता रहता है या कम होता रहता है, एंड वही फाइनेंशियल कैपिटल होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है. एंड समवेयर अराउंड एट द एज ऑफ 55 to 60 आपका जो फाइनेंशियल कैपिटल है या जो आपका जो वेल्थ है वो पीक होता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट. सो मैं एग्जांपल दे रहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका मेजोरिटी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल डेट के नेचर का है. सो जो उसे फर्दर एलोकेशंस करना चाहिए अपना, अगर वो यंग है अभी करंटली एंड ही इज हैविंग अ प्लान टू वर्क फॉर नेक्स्ट 20 to 30 years, सो जो उसे फर्दर एलोकेशन करना चाहिए वो इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड विद इन इक्विटी भी अगर उसे डिसाइड करना है कि लार्ज कैप में जाना है या फिर मिड कैप में स्पेस में जाना है, देन दैट वुड बी डिपेंडिंग ऑन हिज रिस्क कैपेसिटी और वेदर ही वांट टू टेक हाउ मच ही वांट टू टेक द रिस्क इन मार्केट्स. सो ये उसका बेसिकली एक डिसाइडिंग पॉइंट रहेगा. एंड वही सपोज वही 23 साल का या 25 साल का जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो किसी रीजन के कारण बिजनेस में एंटर कर लेता है या फिर अपने प्रोफेशन में एंटर कर लेता है एंड ही स्टार्ट्स हिज प्रैक्टिस. इन दैट केस उसका जो ह्यूमन कैपिटल है उसका नेचर इक्विटी का होगा, बिकॉज उसका प्रैक्टिस चलेगा नहीं चलेगा या फिर वो कितना उस मंथ में अर्न करेगा, देयर कैन बी हाई फ्लक्चुएशन और हाई वोलेटिलिटी इन इनकम स्ट्रीम्स.
सो ऑलरेडी उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का या फिर उस पर्सन का ह्यूमन कैपिटल बहुत हाई है जो इक्विटी में इन्वेस्टेड है ऑलरेडी. सो व्हाट ही शुड डू इज, जो उसे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करना है वो उसे डेट मार्केट्स में या फिर एक ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लेस वोलेटाइल है. एंड एज द एज पासिस, सपोज 25 से एज पास होते होते 35 ईयर्स हो गई या 40 ईयर्स हो गई, देन स्लोली स्लोली व्हाट ही शुड डू इज उससे अपने इक्विटी एसेट्स को और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को धीरे धीरे डेट के नेचर के इन्वेस्टमेंट्स में शिफ्ट कर देना चाहिए फॉर स्टेबिलिटीज इन इनकम at the time of retirement. And this concept explains how a person should allocate in risky investments, or should go for basically safe investments, or should go for private basically equities, or should go for fixed income securities. Hope you understand from this concept. So the next step is ki you have decided that how much you want to invest in equities. The next step would be to decide that whether you want to go for passive management or you want to go for active management. एंड दोनों ही टेक्निक्स के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं और अपने ही कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. एंड neither passive management is better or neither active, मतलब we can't compare both of these on a basis that active management can generate a good amount of return. So what you should do is, suppose there is a number line, one side is passive and second side is active management. So you have to decide कि आपको इस पूरे नंबर लाइन पर कहां पर स्टैंड करना है. सपोज आई वांट टू डू एक्टिव मैनेजमेंट एंड पैसिव मैनेजमेंट बोथ. तो मैंने क्या किया, कुछ इन्वेस्टमेंट्स को मैं एक्टिव मैनेजमेंट की तरह यूज करता हूं एंड कुछ अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किया, जिससे मैं आइदर आई बेसिकली वेरीफाई देम टू क्वार्टरली, एनुअली या ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस. बेसिकली मैं उन्हें बस ये देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा कुछ फंडामेंटल चेंज तो नहीं आ गया मेरी इन्वेस्टमेंट में जो मुझे उसे अपने पैसे को या अपने कैपिटल को उस एसेट क्लास से निकालकर दूसरे एसेट क्लास में शिफ्ट करना है. सो you have to decide ki which management method is good for you, either passive or active, and both are having its own advantages and disadvantages. Kuldeep, any doubt till now, either of participants or of you? Yeah. Firstly, main concern arising here for new investors, I think that they are looking for very first step, like how to enter in this segment, like how to choose scripts, how to enter into this market. Like when they think like market is on upper side or any correction is will be there, how to track that events or how to enter into market for very beginners. Yeah, ये question generally हर beginner का होता है that Yes. from where he should start in equity markets. So I will tell you some steps through which a new investor or trader can start or enter into markets. Firstly, he should try to read. Initially, he should try to read some articles of like mutual fund managers or some big personalities who are active from the last 30 to 40 years in the markets. Or he should read some good books which are on investing or trading. That would be their starting point. And secondly, before entering, the person should analyze his financial health, or how much he's having capacity to take risks in the market, or what should be his risk per trade. He should basically assess all these possibilities that what can go. He should basically a scenario analysis of his financial health. And thirdly, before entering, try to have set a goal, that why are you entering, or why that new investor is entering. Suppose my aim is that after 10 years I want to see a portfolio of 10 cr, and from this aim I am entering into markets. So जो मेरा रोड मैप होगा या मेरा स्ट्रेटेजी होगा वो उसी अकॉर्डिंग बेसिकली प्लान होगा. एंड वहीं अगर कोई इन्वेस्टर या कोई ट्रेडर इसलिए मार्केट्स में एंटर कर रहा है दैट आफ्टर 20 years ही वांट अ गुड अमाउंट so that he can either purchase his house or he want to invest in some other asset class, then उसका जो रोड मैप या उसका जो स्ट्रेटेजी होगा इनटू ट्रेडिंग और इनटू इन्वेस्टिंग, वो स्टाइल उसका दूसरा होगा.
So he should have a clear set of goals before entering into markets. And fourth is, whenever you open account, go for a good broker. जनरली आजकल इतने फ्रॉड केसेस आ रहे हैं मार्केट में. अभी रिसेंटली ये केस आया था जिसमें इन्वेस्टर थ्रू अ टेलीग्राम लिंक ओपन हिज बेसिकली डीमैट अकाउंट. एंड वो डीमैट अकाउंट बेसिकली ना एक डीप फेक था एक एक्चुअल ब्रोकर का. सपोज जरोदा का एक डीप फेक था वो ऐप. एंड उस पर उस इन्वेस्टर ने धीरे धीरे करके 3 CR का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया. एंड वो 3 CR का अमाउंट धीरे धीरे ग्रो होकर ऑन द बेसिस ऑफ टेलीग्राम दैट टेलीग्राम टिप्स ओनली वो 14 CR के आसपास हो गया. एंड एट द एंड उसे पता लगता है दैट ही कांट विड्रॉ दैट मनी. Oh, This is the actual case. I have heard it in about 2 or 1 month back only. This is a real case of India. So try to prefer a good broker or go for a good broker. And fifth, and if you are starting new, then try to go small in per share basis or try to diversify initially. बिकॉज अभी आपको नहीं पता एज अ न्यू इन्वेस्टर दैट कहां पर आप ट्रैप हो सकते हो या कहां मार्केट आपको एक ट्रैप कर सकता है. एंड जनरली एक जो नया इन्वेस्टर वो ट्रैप होता है वो बेसिकली अपनी ग्रीड के कारण या फिर एक उस कारण ट्रैप होता है कि उसे ना अपने इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी मार्केट्स में अगले दिन ही डबल करने का एक होता है क्रेज कि अगर मैं इक्विटी में आ रहा हूं देन आई वुड बी मल्टीप्लाइंग माय वेल्थ. बट मार्केट डजंट वर्क दैट वे. एंड कुछ स्ट्रेटजीज भी हैं जो एक नए इन्वेस्टर या ट्रेडर उसे यूज कर सकता है. जैसे कि मैंने पहले बताया कि दैट यू शुड हैव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ गोल्स. एंड गोल्स आपको बताते हैं कि वेदर यू शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड यू शुड गो फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स. एंड विद इन शॉर्ट टर्म भी वेदर यू शुड गो फॉर पोजिशनल बेसिस और यू शुड गो फॉर स्विंग ट्रेड्स. ये सारा आपके इनिशियली जो आपने गोल डिसाइड किया उसके बेसिस पर या आपकी क्या एक स्किल है जिससे आप मतलब मार्केट में यूज कर सकते हैं वो बताता है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए. एंड सेकंड इज डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. आप हर ट्रेड पे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर फेसिंग अ लॉस. मार्केट डजंट डेट मार्केट और आप ऐसे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे. यू शुड स्टिक टू योर प्लान. And whenever your trade or your investment goes in a opposite way, then try to analyze what was wrong or where I can use this analysis to get better. Thirdly, try to learn fundamental analysis or technical analysis from a good teacher or have a good mentor so that you can आपको कम टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में जहां तक मे भी किसी और इन्वेस्टर को लॉस सह के या फिर लॉस लेकर वहां पर पहुंचा है. सो गो फॉर अ गुड टीचर. एंड वेन एवर यू आर वर्किंग मार्केट्स देन लॉस इज अ कॉन्स्टेंट पार्ट एंड लॉस इज अ गुड टीचर या मार्केट इज अ गुड टीचर. एंड वो आपसे हर चीज का फीस लेगा. वेन एवर यू फेस अ लॉस इन मार्केट वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा. एंड फॉर एवरी लेसन मार्केट चार्ज सम अमाउंट ऑफ मनी. एंड नेक्स्ट इज ट्राई करें मार्केट को जो फीस है वो कम दें थ्रू रिस्क मैनेजमेंट. ट्राई टू हैव अ स्मॉल मतलब बेसिकली स्मॉल अमाउंट इन पर ट्रेड या फिर डिसाइड कर लें इनिशियली दैट पर ट्रेड में सिर्फ 10,000 का या 5,000 का ही रिस्क लूंगा. इस रिस्क मैनेजमेंट की भी काफी स्ट्रेटजीज होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी इसी सेमिनार वेबिनार में दैट कि हाउ यू कैन मैनेज योर रिस्क. And fifth, whenever you are working in markets, try to stay updated. If you are a fundamental trader, yeah, and if you are a fundamental investor, so try to keep yourself updated on the macro level changes and if any micro level changes according to your investments. Updated होना काफी जरूरी है मार्केट्स में. बट ट्राई करें कि आप न्यूज से इम्पैक्ट ना हो. अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हैं then you should basically listen. आप न्यूज सुन सकते हैं but try to do not influence your views according to that news because markets में news manipulation is a common thing. And last strategy which I should and is a basic strategy in the markets for a new beginner that try to have a emotional discipline. भीड़ के पीछे मत भागें. For the first 1 or 2 years, try to understand or try to learn markets instead of trying to earn. मार्केट्स आपको पैसा कभी नहीं देगा जब तक आप मार्केट से चीजें सीखेंगे नहीं.
एंड आपका फर्स्ट 1 or 2 या 3 years में आपका योर एम शुड बी दैट कि व्हाट इज मार्केट और मार्केट कैसे वर्क करता है या मार्केट क्या माइंडसेट के थ्रू वर्क करता है. आप इन चीजों को जब सीखेंगे तब ही आप पैसा कमा पाएंगे. एंड देर आर हाई चांसेस कि अगर आप पहले 3 साल सस्टेन कर गए तो यू कैन जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ इन 4th year. जो आपके पूरे पिछले 3 साल की मेहनत थी वो 4th year के सिर्फ 1 month में पूरी हो जाएगी. सपोज लेट मी गिव एन एग्जांपल. अभी रिसेंटली अभी 4th June अभी इलेक्शन का ईयर था, अभी सबको पता है मार्केट ने बड़ी बुरी तरीके से 4th June को एक अच्छा करेक्शन दिया. एंड आप मानोगे नहीं, मेरे कॉन्टेक्ट में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने 3rd, 4th and 5th को बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया मार्केट से, जबकि 4th को सबको लॉस हुआ है. जनरली जो भी रिटेलर है उसको लॉस हुआ है 4th June को. बट देर आर सम पीपल and even my brother has also booked a good amount in those 3 days. एंड वो 3 days में इतना अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया कि सपोज मुझे मे बी पूरे साल ट्रेड करने का भी नीड ना रहे. लेकिन वो तब हो पाया जब मैं मार्केट में लास्ट 5 से 6 साल मार्केट को मैंने कंस्टेंटली अपना टाइम दिया. सो टाइम इन्वेस्टमेंट जरूरी है मार्केट में. एंड ट्राई करें कि अपनी ग्रीड को कंट्रोल करें. एंड एक न्यू इन्वेस्टर हमेशा मार्केट से फैसिनेटेड होके एक उसकी ग्रीड में फंस जाता है कहीं ना कहीं. इवन वी ऑल्सो गेट ट्रैप समटाइम्स. सो ट्राई करें अपने इमोशंस को एक कंट्रोल में रखने का. एंड द बेस्ट वे टू गेट इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस इज मेडिटेशन. एंड जो भी पर्सन जनरली मार्केट्स में एक्टिव है लॉन्ग टाइम से, वो किसी ना किसी रीजन के कारण मेडिटेशन पे उतर आया है. द वे मार्केट्स आर मूविंग अप एंड डाउन, meditation is a necessity tool to survive in markets. So these are some steps or strategies which a new investor can use to as their initial step basically. So Hope I as you answered mentioned, this question. yeah, as you mentioned in between that, beginners to follow some articles or read some article, news, books. So can you suggest any type of books or authors for which beginners can opt for? Yeah. So for a starting purpose, one can go for The Intelligent Investor. This book is written by Benjamin Graham, and this is also known as the Bible of Value Investing. एंड ये जो बुक है ये बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग पे या फिर कैसे फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट्स करें एंड कैसे उन इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम रखें तो कैसे कंपाउंडिंग अपना मैजिक शो करता है. ये बुक आपको बेसिकली वो चीज बताती है या फिर एक क्वालिटी सिखाती है कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें. एंड वन कैन ऑल्सो रीड द ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टेप. ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए दोनों के लिए ही अच्छी बुक है एंड इज ऑल्सो माई फेवरेट बुक. अभी तक ये सबसे फेवरेट बुक रही है मेरी, बिकॉज दिस बुक बेसिकली टेल्स अस या हेल्प्स अस टू डेवलप आवर साइकोलॉजी इन मार्केट्स. एंड ये बुक हमें बताता है कि व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ ऑपरेटर और अ बिग स्ट्रॉन्ग हैंड्स. जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं उनका क्या थिंकिंग प्रोसेस होता है या किस तरीके से वो एक रिटेलर को ट्रैप करते हैं मार्केट में. ये बुक उन कंसेप्ट के ऊपर बात करता है. एंड ये बुक बेसिकली WD गैन नाम के राइटर है, उन्होंने लिखा है. एंड ये जो राइटर है ये बेसिकली काफी अपने टाइम के काफी एक अच्छे एक ट्रेडर रहे हुए हैं, WD गैन. सो यू शुड श्योरली रीड दिस बुक, द ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टेप. एंड यू कैन ऑल्सो रीड कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स. ये बुक बेसिकली फोकस करता है कि हाउ पर्सन कैन यूज हिज रिसर्चिंग स्किल्स एंड कैसे वो एक बिजनेस को अंडरस्टैंड करके अपनी रिसर्च के थ्रू ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई कर ले दैट आर हाई ग्रोथ मेकिंग कंपनीज इन फ्यूचर और कैन बिकम हाई ग्रोथ कंपनीज इन फ्यूचर. And this book basically focuses on how a person can identify those stocks and can invest or can generate wealth through his knowledge. And one can also go for the book written by Peter Lynch, One Up on the Wall Street. एंड ये बुक पीटर लिंच भी अपने टाइम के एक लेजेंडरी म्यूचुअल फंड मैनेजर रहे हुए हैं. एंड इस बुक में दे टेल दिस व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी और व्हाट वाज माय इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी व्हाइल आई वाज एक्टिव इन द मार्केट्स एंड हाउ अ रिटेल इन्वेस्टर और रिटेल ट्रेडर कैन बेनिफिट थ्रू हिज नॉलेज और कैन लेवरेज हिज नॉलेज टू अर्न मनी इन द मार्केट्स. So these one can start with these books
एंड जैसे जैसे वो इस जर्नी में उतरेगा देन ही विल उसे अपने आप ये कुछ बुक्स के नए नाम पता लग जाएंगे, बट दीज 4 बुक्स कैन बी a starting point for a new investor or trader. Okay, thank you very much. I think we're done with a few questions, and for rest we will take them later. Okay, so I'm moving forward and ये मेरे जो मैंने अपनी जर्नी से कुछ लर्निंग सीखे हैं, बेसिकली जो हमारा आगे का जो नेक्स्ट वन आ रहा है वो बेसिकली उसी चीज पे फोकस करता है जो मैंने अपनी या फिर मे बी मेरे फ्रेंड सर्कल में हम लोगों ने जो सीखा या मार्केट ने जो हमें सिखाया, ये वो लर्निंग्स है बेसिकली. सो द फर्स्ट लर्निंग इज प्लान योर ट्रेड. ये बेसिकली एक कोट भी है कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान. ये बेसिकली फोकस करता है कि वेन एवर यू आर बेसिकली टेकिंग अ ट्रेड, सो दैट शुड बी प्रॉपरली एनालाइज्ड. यू आर नॉट मेकिंग एनी रैंडम एक्शन इन द मार्केट्स. सपोज आज आप उठकर आए एंड मार्केट स्टार्ट हुआ 9:15 पे एंड यू डिसाइडेड कि आज मुझे पीवीआर में बुलिशनेस लग रही है, लेट्स बाय पीवीआर. दैट शुड नॉट बी योर first step. You should have a proper plan, you should have a proper research, you should have a proper basically एक पूरा आपका जो रोड मैप है वो आपके प्रीवियस डे पे डिसाइड होना चाहिए. then only you should enter into markets today. and whenever you are basically planning your trade, these are some steps which you can follow. that firstly, decide your main goal. एंड उस गोल को अचीव करने के सब गोल्स बना लीजिए कि व्हाट इज योर सब गोल्स की हमें मे बी स्टार्टिंग में हमें डे 1 पे 1000 रुपीज अर्न करना है. एंड धीरे धीरे आप जब कंसिस्टेंटली हो पा रहा है वो सब 1000 रुपीज भी, देन यू कैन इंक्रीज योर रिस्क पर ट्रेड्स. एंड वेन एवर यू आर ट्रेडिंग बिग, देन गो फॉर हैजिंग बिकॉज मार्केट कैन रिवर्स एनी टाइम. मतलब वेन एवर यूर ट्रेडिंग देर आर हाई चांसेस कि मार्केट कब रिवर्स मार जाए या कब किस कंट्री में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए एंड आपकी ट्रेड रिवर्स मार जाए. तो इट शुड बी बेटर कि आप हेज कर चले. बिकॉज जब मार्केट अच्छा रनअप दे देते हैं देन जनरली मैनिपुलेशन के चांसेस हाई होता है. अभी रिसेंटली हम बात करें तो अभी 3 दिन पहले की बात है दैट अ स्टॉक विद द नेम ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स, उसके प्रमोटर ने 6% स्टेक ओपन मार्केट में 6% स्टेक एक ब्लॉक डील के थ्रू सेल कर दिया एंड स्टॉक क्रैश्ड समवेयर अराउंड 15% फ्रॉम द इट्स हाइज. सो इस तरह के जो रीजंस है वो आपके कंट्रोल में नहीं है. सो ट्राई टू हैव अ हेज इन योर ट्रेड्स एंड ट्राई टू, जब भी आप ट्रेड लें देन ट्राई कि आप मार्केट में उस टाइम बैठे. इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर देन जब भी आपकी एक पोजीशन ओपन है देन ट्राई टू स्टे एक्टिव एंड ट्राई टू बेसिकली ऑन द स्क्रीन, स्टे ऑन द स्क्रीन. एंड ट्राई करें कि जो भी आपकी ट्रेड्स आपने, सपोज आपने कोई ट्रेड लिया है वो गलत चला गया, आपको लॉस हो गया, सो ट्राई करें आप उससे सीखें, ना कि रिवेंज ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाए कि यार सपोज आज मेरा लॉस हो गया 5000 का, अब मुझे शाम तक पूरे करने हैं इनको, तो मैं बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा. प्लीज डू नॉट यूज दिस माइंडसेट. use proper research, do a proper research, fundamental or technical, whatever your trading style is, and try to hedge your basically options or through options or futures, and follow your trading or investment style in a discipline, and always stick to your initial plan when the trade goes against you. मैंने जनरली ये चीज देखा है कि whenever a trade goes against the person's expectations, वो अपना स्टॉप लॉस ही हटा देता है. And whenever you remove your stop loss, you are giving the market a chance to blow your capital. So try करें एक स्टॉप लॉस मार्क आपका हमेशा हर टाइम एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा होना चाहिए मार्केट्स में. एंड ये स्टॉप लॉसेस ही हमें हमारी कैपिटल को ब्लो होने से बचाते हैं. एंड रिटेलर्स का जनरली ये आई हैव सीन द माइंडसेट दैट रिटेलर्स को स्टॉप लॉस के बारे में ही नहीं पता होता, या दे जनरली पता होता है बट दे जनरली डू नॉट यूज स्टॉप लॉस. And in advance decide your entry or exit points, and this is how you can execute a good trade on, or you can get profitable. and जो हमारे इंडिया में अगर कोई ट्रेडर अगर लॉस कर रहा है या प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो इन्हीं कुछ पॉइंट्स के कारण है जो वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा, कि वो या तो डिसिप्लिन नहीं रख पा रहा, या फिर ही इज नॉट एबल टू मॉनिटर हिज ट्रेड्स, या फिर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या फिर कहीं ना कहीं ग्रीड में फंस गया. सो ट्राई एंड हैव अ good plan and always plan your trade and trade your plan is my basically thumb rule.
एंड नेक्स्ट इज कट एंड कन्वर्ट स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी बेसिकली एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। या फिर सपोज करें आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया एंड दैट स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। सो नाउ अ जनरल रिटेलर व्हाट विल बी डू इज वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेगा, जस्ट बिकॉज वो उसके बेसिकली एक उसके पास जबरदस्ती उसके पास रह रही है इन्वेस्टमेंट, तब वो बेच नहीं पा रहा उसे। एंड ये स्ट्रेटेजी है वो उसी कैपिटल को फ्री करवाने में, उसी कैपिटल को एक रोटेशन देने के लिए काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है ये। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक स्टॉक है यूपीएल। सपोज मैंने वो स्टॉक, अगर आप लोग मार्केट में एक्टिव होंगे तो वो स्टॉक ना समवेयर अराउंड 700 के आसपास ट्रेड कर रहा था 4-5 मंथ्स बैक। सपोज मैंने यूपीएल में एक अच्छा पोर्शन इन्वेस्ट किया एंड मेरा एक्सपेक्टेशन है वो 700 से 1500 होगा सपोज। बट वो इन्वेस्टमेंट मेरे अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया एंड वो 700 की बजाय 300 पर आ गया। सो व्हाट आई कैन डू इज मैं अपना अमाउंट वहां से फ्री करूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट पिक गलत निकल गया, या फिर उसका कंपनी का आगे फ्यूचर नहीं है, या फिर उसका कोई प्रमोटर या फिर एक बड़ा फंडामेंटल चेंज हो गया जो वो रिकवरी शो नहीं कर सकता, अगर ऐसा कुछ रीजन है एंड मुझे लग रहा है कि अब बस मुझे इसकी कंपनी के फंडामेंटल्स पे बिलीव नहीं है एंड आई वांट टू बेसिकली हाउ मतलब कैसे भी करके मुझे अपना पैसा बाहर निकालना है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बेसिकली वहां से अपना पैसा रिलीज करके व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू फाइंड अनदर अंडर वैल्यूड स्टॉक। सपोज उसी टाइम एचडीएफसी बैंक भी 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक इज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर एंड वो सिर्फ 1300 पे इसलिए ट्रेड कर रहा है बिकॉज मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव है, या फिर कुछ मैक्रो लेवल चेंजेस ऐसे हुए हैं जिसके कारण बस वो टेम्परेरीली 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैंने जो अपना पैसा यूपीएल से फ्री करा वो मैं एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर दूं। इन दिस वे मेरी मनी है वो या मेरी कैपिटल है वो वापस एक मेरे लिए इनकम जनरेशन के अंदर लग गई है, इंस्टेड की वो यूपीएल में एक वहां पर इन्वेस्ट करके छोड़ा हुआ मैंने, या फिर वो ट्रेड परफॉर्म ही नहीं कर रही। सो दिस स्ट्रेटेजी एक्ट्स एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल अगेंस्ट योर कैपिटल एंड ये एक अच्छा सोर्स है अपनी ब्लॉक्ड कैपिटल को निकालने का एंड उसे रोटेट करने का। सो आप अगर इस स्ट्रेटेजी को यूज करें देन यू वुड बी इन अ वेरी बेनिफिट, काफी अच्छे बेनिफिट में रहेंगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। एंड थर्ड इज पिरामिड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जैसे कि पिरामिड का शेप होता है इस स्टाइल में, सो उसी तरीके से ये जो ट्रेड है ये हमें हेल्प करती है कि हम कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट का प्रॉफिट अपने घर जरूर लेकर जाएं। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज मैंने कोई स्टॉक इनिशियली बाय किया एट 100 रुपीज, उसकी 100 क्वांटिटी मैंने बाय किया इनिशियली एंड व्हाट आई कैन डू इज मैं अपना स्टॉप लॉस 95 पर रख दूंगा। जैसा कि ये 95 पे आया मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा एंड सपोज उस शेयर ने 100 रुपीज से 10 रुपीज का रनअप दे दिया है एंड करंटली दैट स्टॉक इज समवेयर मूविंग अराउंड 110 रुपीज। सो व्हाट आई कैन डू इज मैं कुछ अगर मुझे अभी भी उसके ऊपर काफी अच्छा बुलिशनेस है तो व्हाट आई कैन डू इज मैं अनदर 75 शेयर्स उस शेयर के बाय कर लूंगा। इनिशियली 100 था, बाद में मैं धीरे धीरे कम इन्वेस्टमेंट्स करूंगा शेयर्स में। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बाय अनदर 75 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 110 रुपीज एंड मैं उसका स्टॉप लॉस रखूंगा 105 रुपीज पे एंड वही जो मैंने इनिशियली अपना 100 शेयर्स बाय किए थे 100 के हिसाब से उसका स्टॉप लॉस मैं 100 रुपीज रखूंगा। इन दैट केस मेरा कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा एंड सपोज वही स्टॉक अब 110 से 120 चला जाता है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल बाय अनदर 50 क्वांटिटीज। मैं धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट्स को छोटा कर रहा हूँ सो दैट अगर वो स्टॉक वहां से रिवर्स कर जाए देन इन द एंड मेरे पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हो जो मैं अपने घर लेकर जा सकूं। बिकॉज इन द एंड मेरा गोल मेरी पिक का सही होना नहीं है, एंड गोल मेरा ये है कि मैं कुछ पैसा मार्केट से घर लेकर जाऊं। सो इसी स्टाइल ये एक स्टाइल है बेसिकली जो आप यूज कर सकते हैं मार्केट्स में वाइल ट्रेडिंग इन द मार्केट्स एंड ये स्टाइल आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो। जैसा कि सपोज अगर हम एंजल का एग्जांपल लें। सपोज एंजल ने 230 रुपीज से 450 रुपीज पे आके एक ब्रेक दे दिया था, वो कुछ टाइम वहां पर ट्रेड कर रहा था। तो अगर किसी इन्वेस्टर को या किसी पर्सन को उसमें बुलिशनेस है तो वो क्या धीरे धीरे अपना अपवर्ड एवरेज करता करता उस स्टॉक में अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर सकता है। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था मार्केट तो सबसे पहले मैंने आईटीसी बाय किया था सिर्फ 10,000 रुपीज का
सो अगर मुझे आईटीसी में और अमाउंट लगाना है तो व्हाट आई शुड डू इज आई शुड बी अपवर्ड एवरेजिंग दैट स्टॉक, एंड ए टाइम के बाद मुझे उसमें भी पिरामिड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज आई कांट कीप ऑन एडिंग बल्क क्वांटिटी एट अ हायर रेट, बिकॉज ह्यूमन का जो ब्रेन है वो एक नेगेटिव वे में फंक्शन करता है। सपोज वहां से इन्वेस्टमेंट 10 या 20 रुपीज डाउन हो गई, तो जनरली एक जो नया ट्रेडर या नया इन्वेस्टर है वो ना अपना फेथ छोड़ देता है, कि वो सोचता है कि यार बस स्टॉक का काम खत्म हो गया, जी एग्जिट लो अब तो इससे। तो have a proper mindset while using this strategy pyramid trading, and fourth is please do not get trapped in euphoria। बेसिकली आजकल ना क्या होता है कि किसी भी चीज का ना एक क्रेज चल जाता है। सपोज अभी रिसेंटली आया था कि एकदम से ना पूरे इंडिया को रेलवे सेक्टर पे बुलिशनेस लगने लग गई, या डिफेंस सेक्टर पे एक बुलिशनेस लगने लग गई, एंड मार्केट वाज जो स्टॉक्स हैं उनकी वो पूरे मतलब एक आई वुड से कि एक पागल आदमी की तरह ऊपर की ऊपर की ओर अलग वैल्यूएशन पे भाग रहे हैं। एंड आज से 3 साल पहले रेलवे में किसी को फ्यूचर नहीं दिख रहा था, एकदम से लास्ट 1 ईयर में उनको ऐसा फ्यूचर दिखने लग गया, या उनको मे बी दे आर राइट। बट आपको जब भी आप मार्केट में कुछ कर रहे हैं तो योर एक्शन शुड बी इन अ प्रॉपर वेल डिफाइंड प्लान, मतलब एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर वेल डिफाइंड प्लान। सपोज मुझे अब रेलवे में फ्यूचर दिख रहा है, बट क्या आज उस स्टॉक के वैल्यूएशन जस्टिफाइड हैं? क्या मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग वो स्टॉक मेरे लिए बाई रिकमेंडेशन देता है मुझे, या फिर मैंने अपना जो एक ट्रेडिंग प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो सारी एक जो चेकलिस्ट है वो स्टॉक पूरा करता है? ये सारा एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें देखना चाहिए, बिकॉज जब वो स्काई रॉकेटिंग वाली जो चीज है वो जब रिवर्स लेती है ना, तो वो फिर करेक्ट भी वैसे ही होती है। सपोज अभी मान लो रेलवे स्टॉक्स ने 300% का रिटर्न दिया, तो जिस दिन वो करेक्ट होंगे ना, वो वहां से सीधा 50% 2 दिन 3 दिन में भी गिर सकते हैं। सो ट्राई टू यूज योर ब्रेन बिफोर गेटिंग ट्रैप्ड इन मार्केट्स यूफोरिया, क्योंकि रिटेलर्स का अगर रिटेलर्स ट्रैप नहीं होंगे तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं या फिर जो पावरफुल पीपल हैं वो पैसा कैसे कमाएंगे? किसी ना किसी को तो बेचना पड़ेगा ना सामान। तो दे ऑलवेज ट्राई टू ट्रैप रिटेलर्स, एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि दो बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड्स आपस में फाइट कर रहे हैं, एंड रिटेलर सिर्फ बीच में आकर मार खा लेता है। सो ट्राई करें कि रिटेलर अपना एम क्लियर रखे, फोकस रखे, और दोनों साइड की तरफ देखे कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है तो नीचे भी आ सकता है। एंड दिस इज द बेसिकली मेन गेम कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, और जो चीज नीचे भी जाती है वो ऊपर भी जाती है वापस। सो ट्राई टू हैव अ क्लियर माइंडसेट। अगर कोई रैली मिस हो भी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस रैली में बीच में, सपोज निफ्टी ने लास्ट 1.5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, सपोज 30% का रनअप दे दिया है। अब अगर किसी ने ये रैली मिस कर दी ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, व्हाट ही विल डू इज ये वो यहाँ पर एंटर कर जाएगा, एंड मार्केट जनरली यहाँ से 20% और बढ़ता है और वहां से रिवर्स कर जाता है और वो यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। रेलवे स्टॉक्स में भी ऐसा ही हुआ था। सो ट्राई करें कि आप इस तरीके की सिचुएशन में ट्रैप ना हो। एंड फिफ्थ इज कि एक ये जनरली ना मार्केट में काफी मिथ है कि जो स्टॉक 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है ना, वो जरूर अंडर वैल्यूड है स्टॉक है, या वो पास्ट में उसने काफी अच्छा एक रनअप दिया होता है तो उनको लग रहा होता है कि यार अभी तो और काफी सस्ता मिल रहा है, लेट्स बाय दिस स्टॉक। या फिर कोई स्टॉक अगर अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा होता है तो उनको लगता है यार ये स्टॉक ने तो काफी अच्छा मूव दे दिया है, चल अब इसको बेच लेते हैं और अपना किसी कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक में लगा देते हैं। सो आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड दैट मूव। अगर वो स्टॉक 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है तो क्या रीजन है कि वो वहां पर, या उसका क्या वैल्यूएशन का रीजन है, वो आइडेंटिफाई करें। हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के प्रेशर के कारण ट्रेड कर रहा हो इस वैल्यूएशन पे, मे बी उसकी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हो। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई रीजन कि कोई फंडामेंटल चेंज तो नहीं आया स्टॉक में कि वो इतना लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स एक ऐसा स्टॉक है जो काफी बार न्यूज में आ चुका है अपने वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण। अभी रिसेंटली भी उसका स्टॉक समवेयर अराउंड 60% फ्रॉम द हाइस्ट करेक्ट हुआ है। एंड सपोज मुझे लग रहा है कि यार इसका तो पास्ट में स्टॉक इस प्राइस का था, लेट्स बाय दिस स्टॉक। एंड वो स्टॉक सपोज किसी कारण या किसी फंडामेंटल के चेंज के कारण रिवर्स नहीं मारता, देन माय कैपिटल वुड बी ब्लॉक्ड। सो ट्राई करें कि अगर कोई स्टॉक नीचे
अगर मूव कर रहा है या कंसोलिडेशन में है, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स रीजन एंड whenever stock is trading at a 52 week high या फिर उससे भी हाई ट्रेड कर रहा है, then try to understand its business model या फिर ऐसा क्या फंडामेंटल चेंज आ गया या क्या कंपनी ने ऐसा कुछ पेटेंट रजिस्टर करवा लिया या फिर उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है या कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी अच्छा है जिस कारण वो जो स्टॉक का जो पहला वैल्यू था वो चेंज होकर अच्छा वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है. सो बेसिकली ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजन या फंडामेंटल रीजन बिहाइंड द प्राइस अवेलेबल इन द मार्केट. And if the price is getting justified with a fundamental change, then try to avoid 52-week low stocks. And sixth is what should be your strategy during market dips. ये स्ट्रेटेजी बेसिकली मैं अपने लिए यूज करता हूँ, मे बी आप लोगों को इससे प्रॉफिट ना हो, ये बेसिकली मेरी ही बनाई हुई या फिर मतलब मैंने इस स्ट्रेटेजी को अपना कुछ एक स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर लिया है, अपनी जो वर्किंग स्टाइल है उसको. दैट कि जब भी मार्केट करेक्ट होता है, सपोज 4 जून को मार्केट ने 10% का डाउन मूव दिया, तो मैंने क्या किया दैट आई हैवंट ओपन माय पोर्टफोलियो. मैंने अपनी पोर्टफोलियो को ओपन ही नहीं किया एंड मैंने उस दिन अगर कुछ बाइंग करनी है तो वो करी. सपोज मुझे बल्क बाय करना था उस दिन, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखा एंड जो भी मुझे स्टॉक्स एवरेज करने थे या बाय करने थे, मैंने उतना उतना स्पेसिफिक ऑर्डर डाल के बाय कर लिया. बट अगर इन केस मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या फिर अपने पोर्टफोलियो को देख लूं, तो जो रेड फिगर्स है ना, जो जैसे सपोज मेरा पोर्टफोलियो 8% डाउन है, तो वो जो सिर्फ फिगर देखकर ही ना काफी जो मतलब सपोज 10 लाख का लॉस दिखा रहा है मेरे को, तो अगर वो लॉस मैंने देख लिया तो मेरा ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा या फिर मेरा ब्रेन मार्केट में बल्क बाई नहीं कर पाएगा. उसको लगेगा कि सपोज उसको लगेगा कि मे बी 5 तारीख को भी मार्केट गिरेगा, तो ऐसा करते हैं आज सारी बाइंग नहीं करते. बट आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे अगर फोर्थ को आपने पैसा लगाया होता है एंड आज के टाइम वो मे बी 30% रनअप दे चुका है. स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स आज अपने लोएस्ट लेवल से मोर देन 30% का रनअप दे चुके हैं इन लेस देन 30 days. सो मेरी यही एक स्ट्रेटजी रहती है, जब भी मार्केट गिरता है दैट डे आई डू नॉट चेक माई पोर्टफोलियोज वैल्यू. मैं अपना जो भी मुझे इनिशियली मैंने डिसाइड किया होता है कि सपोज निफ्टी यहाँ से 8% करेक्ट होगा तो मैं 10 लाख रुपए डालूंगा मार्केट में, या फिर निफ्टी यहाँ से इतना गिरेगा तो मैं अपने पोर्टफोलियो का 20% अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा इतना इस लेवल पे. ये मेरा प्री डिफाइंड होता है एंड उस दिन जस्ट आई एग्जीक्यूट विदाउट यूजिंग माई ब्रेन. बिकॉज जब भी मार्केट गिरता है तो एक अच्छे भले इन्वेस्टर का जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है या जो रैशनैलिटी है वो बेसिकली बायस्ड हो जाती है काफी. सो ये स्ट्रेटजी को काफी फॉलो करें, लेकिन ये रिस्की भी है कि अगर आपने कल को डिप पे बाय किया एंड एक्चुअल डिप उसके बाद आनी है तो यू कैन ऑल्सो गेट ट्रैप्ड. सो ट्राई टू एनालाइज दिस स्ट्रेटजी बिफोर इम्प्लीमेंटिंग. एंड सेवंथ इज 1 second. सेवंथ इज दैट नॉर्मलाइज मार्केट करेक्शंस. अगर आज मैं आपको सेमिनार भी दे रहा हूँ ना, तो मैं ये सोच के बैठा हूँ कि मार्केट हो सकता है मैं सेमिनार देते देते भी 10% करेक्ट हो जाए. आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड कि मार्केट गिरे तो मैं बाय करूं. एंड ये मैं तभी कर पाता हूँ, या एक रेशनल इन्वेस्टर को उसका व्यू पॉइंट यही होना चाहिए कि मार्केट कब मर्जी करेक्ट कर सकते हैं. एंड अगर उसे ये चीज अपने दिमाग में बिठा ली कि हाँ मार्केट्स कैन करेक्ट एनी टाइम 10 to 12%, देन ही कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ, या फिर ही कैन बस मार्केट का जो क्रक्स है वो सीख लिया ना उसने कि मार्केट कब मर्जी क्रैश कर सकते हैं और मेरे पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साइड में पड़ा होना चाहिए सो दैट आई कैन इन्वेस्ट दैट कैश इन मार्केट्स एट द टाइम ऑफ करेक्शन. Corrections are the best time to build your portfolio or build your bulk portfolio. Corrections आपके रिटर्न को ना मल्टीफोल टाइम्स बना देते हैं. एंड मैंने लोगों को देखा है फोर्थ फोर्थ जून को, फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे कोई स्टॉक पूछा. वैसे आई कांट रिकमेंड एनी स्टॉक बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, बट स्टिल सपोज किसी फ्रेंड ने मेरे से कोई स्टॉक पूछा एंड सपोज मेरे भाई ने मुझसे कोई स्टॉक पूछा एंड मैंने उसे वो स्टॉक बता दिया. एंड मेरा भाई भी ऐसे था कि यार लेट्स वेट एंड लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन ऑन 5th जून, उसका वेट करते हैं. बट मेरा एम क्लियर था, या फिर मैं गलत हो सकता हूँ, मैं मे बी 5th को भी वापस से क्रैश आ सकता है. बट देर आर हाई चांसेस कि वहां से जब 10% का एक अच्छा करेक्शन आ चुका है, हेल्दी करेक्शन आ चुका है, देन देर आर हाई चांसेस कि मार्केट वहां से रिवर्स लेगा. मार्केट कैन वेरी वेल गो डाउन. मैं इस बात पे मार्केट को कहीं चैलेंज नहीं करा कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता. मार्केट कैन गो डाउन, इवन मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी, मे बी करेक्ट कर जाए वैसे. बट
ट्राई टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी फंड। लाइक आपने डिसाइड करा हुआ कि मैंने अपना 50 लाख रुपया साइड में रखा हुआ है और हर 10% की करेक्शन पे मैं मार्केट में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करूंगा। एंड एक रेशनल इन्वेस्टर हमेशा उसको पता होता है दैट मार्केट कैन करेक्ट एनी टाइम। एंड ये तो अच्छा बात है ना, मार्केट करेक्ट कर रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन बाय क्वालिटी स्टॉक्स एट अ डिस्काउंट। एंड ट्राई करें कि उस दिन पैनिक सेलिंग ना करें, या उस दिन कुछ मतलब एक ऐसा एक्शन ना ले जो आपको मतलब एक लॉस में कन्वर्ट हो जाए। एंड अगर मार्केट करेक्शन आए तो ट्राई फॉर डाइवर्सिफिकेशन, गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन। सपोज आपको 10 लाख रुपए डालना है, देन गो फॉर डिफरेंट स्टॉक्स। एंड जिस दिन बेसिकली अगर डिप आता है या मार्केट करेक्ट करते हैं, देन ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड buy some good stocks instead of just getting panic. So this is the basically my strategy while working in market or basically in dips. And the eighth is कि don't buy or sell in FOMO. हर एक रिटेल ट्रेडर इस बेसिकली प्रॉब्लम को फेस जरूर करता है। वो सिर्फ फोमो के कारण स्टॉक को हमेशा टॉप पे बाय करता है, वहां से स्टॉक रिवर्स कर जाता है। एंड फिर इंस्टाग्राम पे ऐसी मीम्स बनती है कि जो भी मैं स्टॉक बाय करता हूँ वो वहीं से रिवर्स मार जाता है या फिर वो वहीं से रिवर्स ले लेता है। एंड माई पोर्टफोलियो इज ऑलवेज रेड। सो ट्राई टू हैव अ स्ट्रेटेजी। फोमो को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप अपने इमोशन को इतना अच्छा कंट्रोल करके रखें एंड आप वही चीज बाय करें। आपने डिसाइड किया हुआ है कि मैं वही चीज बाय करूंगा जो मैंने पहले अपनी रिसर्च करके रखी हुई है या फिर जिस पे मुझे भरोसा है। एंड ट्राई टू सेट ट्रिगर्स। हमें ना कोई भी अगर आप अच्छे ब्रोकर का अकाउंट लेंगे तो डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वो ना आपको एक ट्रिगर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दैट व्हेनेवर अ स्टॉक रीचेस अकॉर्डिंग टू द टारगेट प्राइस ऑफ योर रिसर्च, आप वो ट्रिगर इंडिकेट कर देते हैं। आपको बेसिकली एक बेल रिंग होता है या फिर एक नोटिफिकेशन आ जाता है दैट आपका जो टारगेट प्राइस था वो हिट हो गया, या फिर जो भी आपने डिसाइड किया था प्राइस वो स्टॉक करंटली वहां पे ट्रेड कर रहा है। देन ओनली बाय। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है हमें पैसा कमाने का। इवन आई एम सिटिंग हियर, मैंने रेलवे के अंदर और डिफेंस के अंदर एक आई हैवंट अर्नड अ सिंगल पेनी इन दीस थ्रू सेक्टर्स, टू सेक्टर्स। मतलब मैंने पूरी रैली, बोल सकता हूँ कि मैंने पूरी रैली मिस की है, बट स्टिल आई एम हैविंग नो गिल्ट बिकॉज मैंने और किसी सेक्टर में पैसा कमा लिया होगा। मे बी मैंने किसी और स्टॉक में अच्छा रनअप यूज कर लिया होगा, क्या पता। जनरली क्या होता है कि कुछ ऐसे 2 या 3 सेक्टर्स होते हैं जो हमेशा न्यूज में रहते हैं। एंड रेलवे और डिफेंस 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जो इस टाइम उस रीजन के कारण न्यूज में है। सो बेसिकली ट्राई टू हैव योर प्लान एंड डोंट बाय और सेल इन फोमो। दिस इज द बेसिक थिंग, बट हर रिटेलर इस चीज में फंस जाता है किसी ना किसी तरीके से। एंड द नेक्स्ट इज, जो मैं बात कर रहा था बल्क बाय करने के लिए, उसके लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी फंड भी क्रिएट करना होगा। सो सपोज आई वांट टू एंटर मार्केट्स टुडे, तो मुझे आज ही डिसाइड करना पड़ेगा दैट हाउ मच आई वांट टू सेट आई हाउ मच अमाउंट आई वांट टू सेट असाइड। एंड अपॉर्चुनिटी फंड, सपोज मैंने क्या किया होगा मैं वो बताता हूँ आपको। सपोज मैंने अपना पोर्टफोलियो का 50% अमाउंट, सपोज मैंने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। सपोज मेरा पोर्टफोलियो 1 CR का है और मैंने 50 लाख रुपया फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट किया है। एंड मैं उस पैसे को मार्केट में कब लेकर आऊंगा, जब मार्केट्स मिनिमम 5% एंड 5 to 10% की रेंज में अगर मार्केट बेसिकली करेक्ट होता है, देन आई विल इन्वेस्ट बेसिकली 15% ऑफ माई पोर्टफोलियो वैल्यू इन मार्केट्स। सपोज मार्केट ने 15% करेक्शन दे दी, तो वोट आई विल डू इज, मैं अपने जो 1 करोड़ है उसमें से 1 करोड़ का 15% अमाउंट है 50 लाख में से ले लूंगा, एंड दैट आई विल इन्वेस्ट इन मार्केट्स, इन इक्विटी मार्केट। एंड उस जो 15 लाख है उसको भी मैं एक स्टॉक में नहीं डालूंगा, आई विल एलोकेट इट इन माय पोर्टफोलियो। मैं हर शेयर को, कुछ ना कुछ शेयर्स को डाउनवर्ड एवरेज करूंगा जिस पर मुझे ज्यादा भरोसा है या फिर जिस पर मुझे ज्यादा बुलिशनेस लगती है। एंड अपॉर्चुनिटी फंड ट्राई करें कि आप एक बार में या 2 बार में एग्जॉस्ट ना कर दें। अपॉर्चुनिटी फंड कम से कम आपका 3 से 4 बार यूज जरूर आना चाहिए। एंड 4 बार तक तो आते आते मार्केट 50% डाउन हो जाता है, एंड 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट के जब इतना गिर जाता है मार्केट या फिर इतना डाउन मूव दे जाता है, उसके बाद मार्केट जरूर रिकवरी करता है। एंड जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी पे है कि
कैसे मार्केट क्रैश हो जाता है फिर भी रिकवर कर जाता है। अभी तक इन पास्ट हिस्ट्री का ट्रेंड रहा हुआ है कि व्हेनेवर मार्केट्स करेक्ट, मार्केट अगेन शो गुड रिकवरी। अगर मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूँ, जो स्क्रीनशॉट या स्नैप मैंने यहाँ पर लगा रखा है, इसके अंदर अगर हम देखें कि 2020 का जो कोविड क्रैश है, उस टाइम मार्केट्स ने 23 डेज लगातार डाउन मूवमेंट दिया था एंड मार्केट्स अपने हाई से 34% तक करेक्ट हो गए थे। ये बिल्कुल लास्ट एंट्री है, जो इस स्नैप का जो लास्ट एंट्री है वो है, लिखा ना वर्ल्ड क्लोजेस डाउन ड्यू टू कोविड-19। सो मार्केट ने 23 डेज डाउन मूव दिया एंड मार्केट 35% तक अपने हाई से करेक्ट हो गए। बट अगर आप देखें कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में मार्केट ने वहां से 44% का रनअप दिया है एंड वहीं अगर हम 6 मंथ्स का या फिर 1 साल का टाइम पीरियड देखें तो 47% रनअप दिया है या 78% रनअप दिया है। सो माय होल पॉइंट इज कि जब भी मार्केट में क्रैश आता है, अगर आपके पास एक अच्छा खासा फंड पड़ा है, अपॉर्चुनिटी फंड पड़ा है, देन दैट वुड बी अ गुड और अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली एंटर इनटू मार्केट्स। बट अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग दैट आई एम नॉट अ टाइप ऑफ, मैं कोई पब्लिकली एडवाइस नहीं दे सकता कि आप अपना पैसा मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर लें। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई हैव डन इन पास्ट। सो ट्राई टू लाइक, अगर आप इस ग्राफ में देखें, इस स्निप में, आप कोई भी रिसेशन ले लें। अगर मैं 2008 के क्रैश की बात करूं, जो बबल बस्ट हुआ था, उसके अंदर लहमान ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था, उसके अंदर भी मार्केट ने 33% डाउन मूव दिया एंड इन द नेक्स्ट 1 ईयर मार्केट ने 40% रनअप दे दिया वापस। एंड अगर मैं 2001 की क्राइसिस की बात करूं, जो सितंबर 11 अटैक्स हुआ था हमारे ताज होटल पे, उसके अंदर भी मार्केट ने 16% डाउन मूव दिया। 5 दिन लगातार मार्केट ने डाउन मूव दिया एंड इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स मार्केट ने वहां से 25% का रनअप दिया। एंड इन द 1 ईयर देखें हम, अगर इन सारे क्रैशेस को या फिर इन सारे करेक्शंस को मिला लें, तो जो 99% जो आउटकम्स होंगे ना, वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। क्योंकि जो क्रैश होता है उसके अंदर जो पैनिक क्रिएट होता है, वो सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्होंने ओवर पोजीशंस लिया होता है। जिनकी पोजीशंस कंट्रोल में होता है ना, उनके लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक अच्छा मतलब अमाउंट इन्वेस्ट कर सके मार्केट्स में। एंड 11th इज अवॉइड इमोशनल ट्रेनिंग, अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग। बेसिकली ट्राई करें हम आपकी ग्रेड पर कंट्रोल हो एक अच्छा खासा। पेशेंस, मार्केट में ना पेशेंस एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है एंड गेम सिर्फ पेशेंस का है। एंड इवन वॉरेन बफेट ने भी बात बोली हुई है कि स्टॉक मार्केट इज अ वे टू ट्रांसफर फ्रॉम द पर्सन हु आर इम्पेशेंट टू अ पर्सन हु इज पेशेंट, हु इज बेसिकली पेशेंस रखता है। मार्केट के अंदर अगर आप पेशेंस रखेंगे तो यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। गेम सारा पेशेंस का है। आप ये सोच के चलिए कि जब मैंने ट्रेड लिया, सपोज मेरी ट्रेड का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, तो मार्केट 2.5 मंथ्स बिल्कुल मूव नहीं करेगा। मार्केट मुझे डराएगा। मार्केट विल ट्राई टू पैनिक, क्रिएट अ पैनिक दैट कि यार सेल कर देते हैं, सपोज ये स्टॉक मूव ही नहीं करेगा। एंड इन द लास्ट 15 डेज या 10 डेज वो स्टॉक ऐसा बिहेव करेगा कि मतलब ऐसा लगेगा कि यार मतलब वो तो क्या हो गया एकदम से, फंडामेंटल या क्या चेंज हो गया जो स्टॉक ने लास्ट 3 डेज में इतना रनअप दे दिया। सो ट्राई टू हैव अ पेशेंस एंड पेशेंस ही एक ऐसा टूल है जो आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बचाता है। एंड ट्राई टू हैव योर पोजीशन साइज इन कंट्रोल। एंड मार्केट हमेशा आपको अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। मार्केट हमेशा ये आपको बताएगा कि यार चल मैं सस्ता मिल रहा हूँ, ले ले मुझे अभी। बट आप अपनी ग्रीड को कंट्रोल में रखें, अपनी पोजीशन को लिमिट करके रखें एंड ट्राई करें कि जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं उनको जल्द से जल्द एग्जिट करें। एंड मैंने ये देखा है कि रिटेलर्स के अंदर एक ये बड़ी बुरी आदत है कि वो लॉस वाली ट्रेड को तो काफी टाइम तक होल्ड करके रखेंगे, बट कोई अगर ट्रेड उनकी प्रॉफिटेबल होगी ना, वो उसे हाथों बेसिकली काट देंगे कि यार 30% रनअप आ गया, चलो जी बुक कर लो अपना प्रॉफिट। एंड फिर शाम को चल भाई भाई आज तेरा पार्टी दे रहे हैं, ले पार्टी करते हैं। दैट ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए आपका। अगर आप मार्केट्स में हैं एंड अगर आपकी कोई ट्रेड प्रॉफिटेबल है, तो ट्राई टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। जैसे जैसे उस स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए ऊपर की ओर। एंड वेन एवर यू आर ट्रेडिंग, ट्राई टू अवॉइड मार्केट नॉइस। सपोज मेरे एक फ्रेंड है, वो बेसिक सपोज आई एम टेकिंग ऑल द बुलिश ट्रेड्स एंड ही इज ट्राइंग टू फाइंड bearish ट्रेड्स इन मार्केट्स। सो जब भी मैं इनिशियली उससे मिलता था ना, वो हर टाइम यही बोलता रहता था कि यार ये तो ये चीज करेक्ट होने वाला है या फिर ये यहाँ से रिवर्स मारेगा। एंड इसी रीजन के कारण ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने अपनी पोजीशंस को
उसके कहने पे स्क्वायर ऑफ कर दिया था इन इनिशियल डेज ऑफ माय करियर। बट लेटर आई रिकॉग्नाइज्ड कि मार्केट में हर पर्सन का एक अलग व्यू है, हर एक पर्सन का एक स्टॉक को देखने का, एक मार्केट को देखने का एक अलग व्यू पॉइंट है। सो whenever you are taking a trade, try to avoid all the noises around you, and the most important thing is try not to deviate from your initial plan. सो दिस इज द बेसिकली कि आपको ये कुछ मेथड्स यूज करके आप अपनी इमोशनल ट्रेडिंग को रोक सकते हैं। एंड जितना जल्दी आप इमोशनल ट्रेडिंग को रोक देंगे उतना जल्दी ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज 12th पॉइंट, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। हर एसेट का प्राइस कोविड के बाद अब तक कुछ ना कुछ रन अप दे गया है, बट व्हाट माय ब्रेन डाइजेस्ट, या फिर जो मेरे ब्रेन को पसंद है, या फिर जो मुझे पसंद है, या फिर ऐसे सेक्टर्स जो मुझे पसंद है, मैं उन्हीं में पैसा लगाऊंगा ना। सपोज क्रिप्टो ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया, बट सपोज मुझे ना क्रिप्टो पे बिलीफ नहीं है, या फिर मुझे क्रिप्टो अच्छा नहीं लगता, देन इट डजंट मीन कि सिर्फ क्रिप्टो बढ़ रहा है तो मुझे अपना कुछ परसेंटेज या कुछ अपना पोर्टफोलियो को वैल्यू क्रिप्टो में देना चाहिए। ट्राई टू इन्वेस्ट इन दोज एसेट्स इन विच यू फील सेटिस्फाइड। उन एसेट्स को चूज करिए, या अगर मैं सिर्फ इक्विटी की बात करूं तो सिर्फ उन इंडस्ट्रीज को या उन सेक्टर्स को चूज करें जिनके ऊपर आपको भरोसा है। सपोज जैसे जनरली मैं क्या करता हूं, मैं ना एग्रीकल्चर सेक्टर्स या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होते हैं ना उनको अवॉइड करता हूं, बिकॉज वो ना काफी वोलेटाइल होते हैं। जस्ट बिकॉज अगर सपोज किसी रीजन में रेन नहीं आई या किसी रीजन में बारिश नहीं हुई, उस सिर्फ एक बारिश के कारण उस कंपनी का, उस क्वार्टर का, या उस साल का वो पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, एंड उसी कारण उसका प्रॉफिट नहीं आया, एंड नथिंग कंपनी कैन डू। कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती बिकॉज ये एक नेचुरल फैक्टर है। एंड वो मुझे मुझे कभी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड कंपनीज पसंद नहीं आई। सो व्हाट आई डू इज बेसिकली आई, इवन इफ आई वांट टू हैव अ ट्रेड इन दो सेक्टर्स या इन दो स्टॉक्स, मैं अपनी कैपिटल का बहुत छोटा परसेंटेज उन ट्रेड्स में यूज करता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे ब्रेन को एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करूं। सपोज जैसे इंडिया एक ग्रोइंग स्टेज में है, एंड सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स जो काफी मुझे लगता है ग्रोइंग हो सकते हैं, आई ट्राई टू टेक गुड एक्सपोजर इन दो स्टॉक्स या उन दो सेक्टर्स। सो ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर दोज स्टॉक्स या फिर दोज एसेट क्लासेस विच यू फील अट्रैक्टेड टू। दुनिया किसी ना किसी चीज में पैसा कमा रही होगी। इवन इफ आई वुड से कि ड्रीम इलेवन का भी बहुत ट्रेंड चलता है, लेकिन मुझे नहीं पता, या फिर आई एम हैविंग नो स्किल्स टू अर्न अ सिंगल रुपी इन ड्रीम इलेवन, या मुझे गैम्बलिंग नहीं आती सपोज, तो लेकिन कोई ना कोई तो गैम्बलिंग से भी पैसा कमा रहा है ना। सो नथिंग इज बैड इफ इट इज इन लिमिट्स। सो ट्राई टू बेसिकली फोकस इन दोज एसेट्स या फिर उन्हीं एसेट क्लास में जो आपको समझ आते हैं। एंड 13th पॉइंट इज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। एंड ये एक काफी कॉमन सा पॉइंट है कि मार्केट को ना आप सिर्फ 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से जज ना करें, या फिर ट्राई टू व्यू मार्केट एज अ डिकेड गेम। मार्केट को ना 10 साल देखे, मार्केट को टाइम दे अपने इन्वेस्टमेंट्स को, कि 10 साल के लिए मार्केट में टाइम दे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर पाए। जैसा हमने मेरे को स्टार्टिंग में इनिशियली एक स्टोरी बताई थी दैट हाउ विप्रो, द पीपल ऑफ अमनलेर, हाउ दे क्रिएटेड अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ थ्रू विप्रो। उस टाइम किसी ने सिर्फ 10,000 रुपीज ही विप्रो में लगाया था, जिसकी वैल्यू आज 200 करोड़ रुपया है। सो लेट मार्केट या लेट टाइम प्ले इट्स अ गेम, एंड प्लीज डू नॉट इंटरफेयर इन मार्केट्स व्हेन एवर यू आर मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपका किसी स्टॉक को लेकर लॉन्ग टर्म व्यू है, देन प्लीज उस इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक ना करें डेली बेसिस पे, नहीं तो आपका किसी ना किसी दिन जरूर उन्हें सेल करने का मन करेगा। व्हाट आई डू इज इन दैट केसेस कि मैंने अपने ना 3 डीमेट बना रखे हैं। वन इज फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज, सेकंड इज फॉर होल्डिंग शॉर्ट टर्म ट्रेड्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एंड थर्ड इज फॉर लॉन्ग टर्म, एक्सेसिवली लॉन्ग टर्म इन एसेट्स। उस बेसिकली डीमेट अकाउंट को मैं या तो ऑन अ वीकली बेसिस या फिर एक मंथली बेसिस पर जरूर मैं ट्रैक करता हूँ कि क्या चल रहा है उस इन्वेस्टमेंट पे। उसके अलावा मैं जो लॉन्ग टर्म वाला जो डीमेट अकाउंट है, मैं उसको ओपन ही नहीं करके देखता कि मुझे कहीं उसको देखकर सेल करने का मन ना कर जाए, या मैं कहीं उसमें टाइम करने का ट्राई ना करूँ उसको, मार्केट को।
सो ये एक स्ट्रेटजी मैंने यूज की है कि 3 डिफरेंट डीमैट्स अकाउंट आई हैव ओपनड इन माय नेम, and I basically bifurcate however much amount I want to invest for long term, short term, or for rotation purposes. So, but your focus should always be on a long term. मार्केट में कभी भी 2 महीने के रिटर्न से ये मत जज कर लेना कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। मार्केट आपके 3 साल का प्रॉफिट 1 साल में या एक दिन में भी ले सकता है। सो ट्राई करें मार्केट को एक लंबे समय के तरीके से देखें मार्केट को। डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस। एंड 14th इज एम्ब्रेस वोलेटिलिटी। जनरली जब मार्केट में ज्यादा ऊपर नीचे होता है या ज्यादा फ्रीक्वेंट टर्न्स आते हैं ना, तो जो रिटेलर्स होते हैं ना वो काफी पैनिक में आ जाते हैं। जो नए रिटेलर्स होते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पैनिक में आते हैं। बट जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है ना, उनके लिए ये एक बेसिकली सीजन का टाइम हो गया। मतलब दे अर्न मोर इन फ्रीक्वेंट वोलेटिलिटीज। लोगों ने, या फिर आई वुड से कि मार्केट में जो अच्छा, जो अगर अब मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करूं, तो जो अप्रैल मई और जून में से जो तीनों के सबसे बढ़िया मंथ रहे ना ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग, तो वो मई और जून का मंथ गया है। बिकॉज उस टाइम मार्केट ने बहुत फ्रीक्वेंट अपसाइड और डाउनसाइड मूव्स दिए थे। सो ट्राई टू बेसिकली accept volatility. Volatility is a part of markets, and there are various strategies through which you can play with volatility. उनमें से ना एक स्ट्रेटजी है कैलेंडर स्प्रेड। ये बेसिकली एक ऑप्शन रिलेटेड स्ट्रेटजी है, एंड यू कैन गूगल इट कि कैसे हम एक कैलेंडर स्प्रेड को यूज करके वोलेटिलिटी को एक फैक्टर कर पाए, या कैसे हम वोलेटिलिटी के थ्रू अर्न कर पाए। बट ट्राई करें कि अगर मैं ओवरऑल एक स्टॉक लेवल पे बात करूं, एक एज अ नए इन्वेस्टर के तरीके से बात करूं, तो ट्राई टू बेसिकली एक्सेप्ट वोलेटिलिटी। ये मार्केट का एक कांस्टेंट कंपेनियन है वोलेटिलिटी। सो ट्राई टू मेक इट योर फ्रेंड एंड ट्राई टू अर्न विद इट्स हेल्प, इंस्टेड ऑफ कि यार वोलेटिलिटी तो मुझे पसंद नहीं है, मैं तो समझने का ट्राई नहीं करता वोलेटिलिटी को। ट्राई करें, वोलेटिलिटी को समझें। एंड देयर इज अ इंडेक्स इन निफ्टी थ्रू विच यू कैन ट्रैक द मार्केट्स वोलेटिलिटी। इसका इंडेक्स का नेम है विक्स। इसका जो बेसिकली नेम है विक्स है, वो IN इंडिया विक्स। उसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं कि दैट मार्केट में अभी क्या सेंटीमेंट्स है, मार्केट में अभी कोई उनको लग रहा है कि बड़ी मूवमेंट आ सकती है या नहीं आ सकती। यू कैन ट्रैक दैट वोलेटिलिटी थ्रू दिस इंडेक्स। या कुलदीप? Yeah, now we have a few of questions, though I think we should take them because of Okay. short of time. Yeah. Here one question about the topic we started in beginning about mutual funds. So in the recent case of time, here are many front-running cases about mutual funds, about their integrity, fund houses integrity. Several newses like a day before yesterday also about a big mutual fund house, a news as in the market. So what do you think about these type of practices, and for investors, small investors, how to check about them and how to proceed? तो देखो, फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग बेसिकली, सपोज एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को उन्होंने डिसाइड किया कि दैट वी विल इन्वेस्ट 100 करोड़ रुपीज इन सपोज टाटा पावर। तो व्हाट विल फंड मैनेजर डू कि फंड मैनेजर पहले ही किसी और के थ्रू अपने अकाउंट में कुछ टाटा पावर के शेयर्स बाय कर लेगा, सो दैट कि जब वो बल्क ऑर्डर प्लेस करे ऑन बिहाफ ऑफ द म्यूचुअल फंड, देन जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उस पर एक अच्छा प्रेशर आने के कारण, मार्केट में डिमांड आने के कारण उस का स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो जाए। सो फ्रंट रनिंग एक काफी कॉमन रह चुका है, एंड रिसेंटली ओनली अभी 3-4 डेज पहले भी क्वांट करके एक म्यूचुअल फंड है जिस पर सेबी ने रेड किया है बेसिकली इन रिलेशन टू फ्रंट रनिंग केसेस। एंड ये कुछ नई बात नहीं है। फ्रंट रनिंग के केसेस कई बार टाटा के म्यूचुअल फंड्स पर भी लगे हुए हैं और कई बार आदित्य बिरला के म्यूचुअल फंड्स पर भी लगे हुए हैं। एंड अगर फ्रंट रनिंग का केस लगता है देन इट डजंट मीन कि पूरा फंड हाउस खराब है। ये बेसिकली कुछ ऐसे मैनेजर्स होते हैं जिनके जिन्हें ज्यादा ग्रीड होता है या ज्यादा मतलब पैसा कमाने का ऐसे लालच होता है। सो दे एंटर इनटू दीज मैल प्रैक्टिसेस। एंड अगर फिर भी एक इन्वेस्टर को एक कोशिश होना है इस चीज से
तो व्हाट ही कैन डू इज कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है। एंड यही एक अच्छा टूल है एक मतलब फ्रंट रनिंग से बचने का। ऑल्दो अभी अगर हम क्वांट की बात करें, जो म्यूचुअल फंड में केस चला है रिसेंटली, उसमें भी अभी सेबी ने ओपनली नहीं बोला कि दैट देयर इज अ केस ऑफ फ्रंट रनिंग, एंड नाइदर द फंड हाउस हैज कम विद एन स्टेटमेंट दैट कि कोई मैनेजर उसमें फंसा या नहीं फंसा। सेकेंडली, मार्केट में सब कुछ चलता है, मार्केट में कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग भी होती होगी, तो इस चीज को तो आपको फैक्टर करना ही पड़ेगा। But quants have sent emails to their investors about these type of rumors or news, which we can say like this type of thing is running in the market in their fund house. Do they shared this email to all of their investors to don't be panic or to don't sell? yesterday only quant has come with a statement that still अभी तक अभी भी सेबी ने किसी भी उनके मैनेजर पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, एंड टिल नाउ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। कुलदीप, आर यू देयर? Yeah, might be. Yeah, my network is floating. Yeah, I am there. Yeah, तो द here बेस्ट। one more thing. ओके। Yeah. Next is what do your outlook about the Indian market for the next 1 or 2 years? Like in current scenario, how do you think like how market will perform in next 2 3 years? तो अकॉर्डिंग टू मी, नेक्स्ट, अगर इफ द करंट गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इफ इट स्टेज ऑन इंफ्रा, और अगर वो एक उस पर रहता है कि एफडीआई की इनकम, हमें एफडीआई का जो इनफ्लो है वो हमें लाना है, या फिर हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते रहना है, एंड दे वांट टू इंक्रीज देयर जीडीपी, एंड अगर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हैं, तो द नेक्स्ट 10 to 20 years वुड बी अ गुड, आई वुड से न्यूबी के लिए या न्यू इन्वेस्टर के लिए इट वुड बी अ गुड टाइम पीरियड टू एंटर इनटू मार्केट। करंटली जो इंडिया का मार्केट है वो इन कंपैरिजन टू अदर मार्केट्स, और आई वुड से यूएस के कंपैरिजन में जो हमारा इंडिया का मार्केट है ना, वो 1/10 भी नहीं है। मतलब इंडिया का जो मार्केट है वो समवेयर अराउंड 5 ट्रिलियन है, एंड वहीं जो यूएस का मार्केट है वो समवेयर अराउंड 55 ट्रिलियन के आसपास है, यूएस डॉलर्स। सो इट्स अ लॉन्ग वे फॉर इंडियन इक्विटी टू ग्रो, एंड अभी तक तो इंडिया की सिर्फ 4 करोड़ की पॉपुलेशन ही है जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करती है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन इज समवेयर अराउंड 150 करोड़। सो नेक्स्ट 10 to 20 years would be a good, I would say, or a golden duration of for Indian equities। एंड जिस भी पर्सन का एम, अगर लॉन्ग टर्म एम है कि अगर मुझे 20 साल मार्केट में स्टे करना है, देन दिस टाइम वुड बी अ, और आई वुड से कि ये जो करंटली एक फेज चल रहा है काफी अच्छा है टू मेक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ लॉन्गर टर्म पर्पस। Okay. Now, in the light of future and options segment, as we see, many of retail investors are booking substantial losses in this segment. Many of the beginners or many retail investors are looking for fast cash, but as usual, they are booking substantial losses in this market. So, how they can mitigate this risk or how they can think to invest in this sector? तो फर्स्टली ट्राई करें कि ऑप्शंस या फ्यूचर्स को हेजिंग पर्पस के लिए यूज करें, और अगर कोई किसी इन्वेस्टर को है, ट्रेडर को है कि मुझे तो एफ एंड ओ से ही अपना मतलब ट्रेडिंग करना है, देन ही शुड पुट अ स्टॉप लॉस का यूज करें। एंड फॉर बिगनर्स आई विल अगेन रिकमेंड कि प्लीज एफ एंड ओ सेगमेंट को पहले 2 से 3 साल के लिए छोड़ दें, एंड अगर फिर भी आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप अगर एंटर करेंगे भी तो 2 महीने आपको खुद पता लग जाएगा कि वत्सल खेमका आके ये बात क्यों बोल रहा था। सो ट्राई करें कि एफ एंड ओ सेगमेंट को फर्स्ट 2 years डू नॉट टच दैट सेगमेंट। एंड ये आजकल जो इंस्टाग्राम पे या इन्फ्लुएंसर्स ने जो इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे एक जो क्रेज बनाया है ना कि हीरो जीरो ट्रेड्स का, कि 10 रुपए का ऑप्शन खरीदिए एंड दैट वुड बी समवेयर अराउंड 400 हम सेल कर रहे हैं। तो ये चीजें ना एक नए इन्वेस्टर के लिए, नए ट्रेडर के लिए ट्रैक करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
एंड अगर 10 का ऑप्शन अगर हमारा 40 का भी हो जाता है ना, तो भी एक ह्यूमन ब्रेन को लगता है कि मेरी कैपिटल 4x हो गई है, चल लेट्स एग्जिट. बट द वे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैव शोन स्टॉक मार्केट, या फिर जितना इजीली उन्होंने स्टॉक मार्केट को बना दिया है, पोर्ट्रे कर दिया है, एंड उतना नहीं है. मार्केट इज अ वेरी tough player against which you are playing. So firstly try to basically size your positions. And एक झुंझुनवाला जी जो हमारे बेसिकली इंडिया के वॉरेन बफेट भी बोले जाते हैं, उन्होंने ये एक सेमिनार में बेसिकली बात बोली थी फॉर ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग, कि जो ऑप्शन बायर है उसके लगाने वाले का जेब खाली और खाने वाले की तिजोरी खाली. ही सेड दिस लाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स. सो उन्होंने अगर ये कुछ बोला है तो मे बी कुछ अपने एक्सपीरियंस से बोला है. उन पर्सनल लेवल में भी झुंझुनवाला जी एक बहुत बड़े ऑप्शन ट्रेडर रहे होंगे. बट अगर हम मासिस की बात करें तो इंडिया के 90% जो इन्वेस्टर जो एफ एंड ट्रेडर्स हैं वो लॉस में है. एंड इवन फ्रॉम द लास्ट 8 to 9 months सेबी ने भी काफी फिनफ्लुएंसर्स के ऊपर बहुत हैवी फाइन लगाया है, बिकॉज वो खुद लॉस में, जो फिनफ्लुएंसर्स थे वो खुद लॉस में थे, एंड वो बस अपना कोर्स बेच के अपनी जो मार्केट में एफ एंड ट्रेडिंग के थ्रू जो उन्होंने लॉस किया था वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे. सो प्लीज अवॉइड एफ एंड. अगर फिर भी करना है आपको एफ एंड तो ट्राई टू हैव अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. या Okay. Our viewers just again want you to re-mention the name of books and articles you mentioned previously. Yeah. So first book is The Intelligent Investor, which is written by Benjamin Graham. Second book is Truth of the Stock Tape. I repeat, second book is Truth of the Stock Tape. And third book is Common Stocks and Uncommon Profits. I am again repeating all the three names. First is The Intelligent Investor. Second is Truth of the Stock Tape. Third is Common Stocks and Uncommon Profits. And fourth is One Up on the Wall Street. So these are the four books I have recommended earlier. Okay, so I think we're done with all the questions, and it's a great opportunity for all the viewers to take these insights. And for beginners, obviously, it's a great session to learn how to enter into market and all. Though it's a great time you have invested there for the beginners, investors, and retail investors, for our members and all. So I would like to thanks from all the members and to you for arranging such a webinar and providing these insights, these key learning points, and how to tackle the market in various situations. Though we thank you very much for this session. Thank you, Kuldeep. I hope everyone Yeah, liked this seminar, and definitely. try to use the strategies, and you can surely create a great career in stock markets. Even I have left my job for a specific reason only. So Yeah, we have mentioned earlier that you now fully involved in this market and all. Yeah. yeah, Okay. have a great day. Yeah. Thank you.